Hare Krishna. So we welcome you all for this evening for Bhagavad Gita simplified class. आप सबका स्वागत है. अपना देश সকল के स्वागत हो जानाई. So we will start with Mangalacharan prayers and then we'll begin. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsya Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratushe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Prashabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadra Subhadrabhyam Jagannathaya Te Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangham Langhayate Grim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Hare Krishna. So we welcome you all for this evening's Bhagavad Gita session. So we are taking some extra session. अभी हम जो भी sessions ले रहे हैं, this is not directly from Bhagavad Gita but various lessons from Srimad Bhagavatam and all. तो अभी हम जिस पड़ाव में हैं, उसमें हमारा चर्चा का विषय चल रहा है कि भगवान अगर एक है तो इतने सारे देवी देवता क्यों बनाए और किस प्रकार से सृष्टि भगवान ने बनाई है, इतने सारी देवी देवता क्यों हैं. तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर हम अगले कुछ सेशंस में, ऑफ कोर्स ये एक सेशन में कंप्लीट करना काफी मुश्किल है. इट्स क्वाइट अ ह्यूज लाइक डिस्कशन. तो एक सेशन में कंप्लीट करना मुश्किल है. पिछले सेशन में हमने कुछ डिस्कशन किया था, तो आज फिर से हम लोग इसी को रिज्यूम करने वाले हैं. तो लेट्स बिगिन विद आवर स्लाइड्स. वन सेकंड. तो पिछले सेशन में हमने कुछ चर्चा की थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो लास्ट आप लोगों से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, पिछले क्लास में कितने लोगों के एक हमने चर्चा लास्ट, इफ वी सी द रिवीजन ऑफ लास्ट सेशन, जस्ट अ मोमेंट. तो हमने चर्चा की कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग होते हैं इस संसार में और सबकी श्रद्धा के अनुसार. इफ वी सी, इफ यू आर एबल टू सी दिस पावर पॉइंट, तो हमने चर्चा की थी कि भगवान ने भिन्न एक ही धर्म को कितने भी इफ वी सी इन वन रिलीजन आल्सो, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न अपने आराध्य देव, उनके जो वर्शिपेबल व्यक्ति हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. तो आगे अगर हम देखने जाएंगे, भगवान ने हमने देखा कि भगवान के अंडर में तीन प्रकृति हैं, तीन प्रकृति के तीन गुण हैं और उन गुणों के हिसाब से ही पूरा ब्रह्मांड ये चल रहा है. और इसके हिसाब से हमारे सारी चिंता भावना है ना, हमारी whatever we think, whatever we do, everything is dependent on these things only. तो there are three types of good modes: passion, ignorance and goodness. तो अगर आपसे मैं पूछूं, लास्ट क्लास में अगर हमने एक होमवर्क दिया था, इन द सेंस कि क्लास के बाद एक वीडियो मैंने शेयर किया था, how these three modes are working, cosmic laws of harmony.
कितने लोगों ने वो कॉस्मिक लॉज ऑफ हार्मोनी वाला वीडियो देखा है? लाइक इट्स 1 hour 6 minutes वीडियो. हाउ मेनी ऑफ यू हैड सीन? ओके, योगेश्वरी, अभिजीत, नॉट मैनी. प्रियंका माता जी, प्रियंका घोष. तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, यू प्लीज वॉच दिस वीडियो. अदरवाइज हाउ 3 modes आर वर्किंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल्सो. क्योंकि चैप्टर 14, चैप्टर 17 आते आते बहुत समय लगने वाला है. 14वां अध्याय और 17वां अध्याय, और इन्हीं तीनों के हिसाब से हमारी श्रद्धा भी डिपेंड करती है कि हाउ आवर फेथ इज डिपेंडेंट ऑन दीज 3 थिंग्स. आवर फेथ इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन these 3 modes. तो आगे चल के हमने बताया रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण की क्या निशानियां हैं, हमने बहुत डिटेल में चर्चा की. और इवन मतलब ये सब तो ठीक है, दिन का समय भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के हिसाब से डिवाइड किया गया है. इसीलिए तमोगुण वाले समय में अंधेरे, मतलब जो रात का समय है, इस समय ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो समय है निशाचर लोगों के लिए या तमोगुण में जो व्यस्त लोग रहते हैं उनके लिए. हमें सत्वगुण में कोशिश करनी चाहिए कि पहले जो दिन के ब्रह्म मुहूर्त के बाद सुबह 4 से अगर 10 बजे तक हम देखें तो दैट इज लाइक 10 या 12 बजे तक इट इज लाइक मोड ऑफ गुडनेस टाइम. देन 10-12 अगर हम पकड़ें से लेकर रात को 8 बजे तक, दिस इज अ मोड ऑफ पैशन टाइम. इसी समय लोग एक्टिव रहते हैं, कमाते हैं, अपने जीविका चलाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, सारे काम करते हैं. और रात को 12 बजे से लेके फिर से अगर सुबह 4 बजे वाला समय, रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का अगर समय देखें, दिस इज द टाइम ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस. इस समय हमें एक्टिव नहीं रहना चाहिए. तो ये समय दिया गया है, हमें प्रिस्क्राइब किया गया है सोने के लिए. तो उस जिस प्रकार से ये पूरा समाज है, ये जिस प्रकार से एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, हर जगह ये तीनों गुण काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी वेदों का डिवीजन किया. क्यों? आगे चलकर वेदों को उन्होंने 4 वेदों में डिवाइड किया और भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों के वर्शिप के हिसाब से लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के पुराण दिए, ताकि जिसको जिसमें श्रद्धा है वो उसको अप्रोच कर सके. जिसको जिसमें श्रद्धा है. जैसे अगर हम यहाँ पर उदाहरण देंगे, भागवत पुराण वो किनके लिए है? सात्विक लोगों के, व्यक्तियों के लिए. लेकिन अगर हम देखेंगे, कुछ लोग बोलते हैं अरे हमने तो देखा है कि शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ज्योतिर्लिंग सबसे सुप्रीम है, या ये है, सब लोग आके देख रहे हैं. देखिए, ये पुराणों को किस लिए प्रिस्क्राइब किया गया है. जैसे हमने लास्ट वीक में क्लास में बताया कि कभी एक डॉक्टर होता है, उसके पास कोई पेशेंट आते हैं, हर पेशेंट के लिए वो सेम दवा नहीं देते हैं. हर पेशेंट को पेशेंट की बीमारी को देखकर ही गिव्स मेडिसिन. उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है जिस चेतना में है, उसकी चेतना को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए ये जो शास्त्र हैं ये हमारी मदद करते हैं. कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो इनमें से कोई भी पुराण को विश्वास नहीं करते. दे आर लाइक कंसिडर्ड कि उससे अगर कोई किसी भी प्रकार के शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता है, उससे उसको उठाना है, तो किस प्रकार से उठाएंगे? तो चलो भाई, एटलीस्ट फॉलो दिस स्क्रिप्चर्स. तो ऐसे पुराणों में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर बाकी देवी देवताओं के बारे में, स्पेशली लॉर्ड शिवा, उनकी वर्शिप के बारे में दिया गया है, क्योंकि लॉर्ड शिवा इज सो कंपैशनेट इवन फॉर फॉलन सोल्स. इतने गिरे हुए लोगों को भी उठाने के लिए ही इज द पर्सन. उनकी चेतना में थोड़ा सा सुधार करने के लिए उनके लिए प्रिस्क्राइब किया है कि यू शुड वर्शिप लॉर्ड शिवा. बट उन सब शास्त्रों में भी अगर हम देखेंगे, वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण की सुप्रीमेसी के बारे में दिया हुआ है. हमारा प्रॉब्लम है कि हमने वो सेक्शंस उन सब चैप्टर्स में से नहीं पढ़े. ऑल्दो इफ यू सी शिव पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कितने सेक्शंस भरे हुए हैं कि लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम, वहां पर भी हैं. लेकिन लोगों की श्रद्धा को बजाय रखने के लिए, लोगों की श्रद्धा को किसी एक देवता पे स्थापित करने के लिए, क्योंकि पहले उनकी किसी भी चीज में श्रद्धा नहीं है, एक देवताओं में कि धीरे 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 उनकी श्रद्धा ऊपर तक बढ़ाई जा सके, तो इस समय तामसिक ग्रंथ काम आते हैं. तो मतलब स्पेशली इन द सेंस कि ऐसे लोगों को, तामसिक प्रकृति के लोगों को डायरेक्ट किया जा सके किसी देवताओं के पास. फिर थोड़ा और वो मैच्योर होंगे, देन दीज स्क्रिप्चर्स डायरेक्ट देम टू द स्क्रिप्चर्स ऑफ राजसिक. अरे भाई, एटलीस्ट यू शुड फॉलो दीज स्क्रिप्चर्स. जैसे देवी दुर्गा की पूजा करना, कुछ चीज की प्राप्ति कर ले, या ब्रह्मा जी की पूजा करना, या इंद्र की पूजा करना, वायु की पूजा करना, चंद्र की पूजा करना, सूर्य देव की पूजा करना. तो ये है रजोगुण. कुछ पाने के लिए, कुछ बहुत एक्सेसिव पैशन है किसी के अंदर उस चीज के लिए. और अगर इसको कोई ठीक तरह से फॉलो करे, देन इनकी चेतना में थोड़ा बढ़ोतरी होती है. देन दे डायरेक्ट देम टू सात्विक स्क्रिप्चर्स. तो ये हमने लास्ट वीक में चर्चा की थी. एंड अगेन इफ वी फर्दर गो, सो दिस इज द पुराणास फॉर इग्नोरेंट. हमने बताया वर्शिप इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है, कि धनम देही, जन्म देही, रूपवती, भार्या देही, देही, ये सारी चीजें मांगना. तो ये सारी चीजें हमने बताई कि 5 M's आर देयर. 5 M है, मांस, मत्स्य, मदिरा, मूर, मैथुन. ऑफ कोर्स ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस अप्रोच से लॉर्ड शिवा को अप्रोच नहीं करते. ये उन लोगों की बात करी जा रही है कि एकदम ही तमोगुण में है. बट ऑफ कोर्स हम जब शिव जी या पार्वती या किसी भी देवता की अप्रोच करते हैं, हमारी कुछ इच्छाएं प्रधान रहती है.
ऑफ कोर्स वी मे नॉट बी ऑन दैट लेवल ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, बट हमारी कुछ ना कुछ हम लोग मिक्स्ड मोड्स में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण थोड़ा सतोगुण भी है, थोड़ा तमोगुण भी है, बट हमारी इच्छाएं प्रधान है। और क्योंकि उनको फॉलो करने से इनका थोड़ा रिलैक्सेशन है, मांस मत्स्य मदिरा ये सब खा सकते हैं, तो वी ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स अपने मन के हिसाब से करने के लिए। आगे चल के हमने ये भी कहानी बताई वृकासुर की कहानी, एंड और तो हमने बताया कि एनिमल सेक्रीफाइस क्यों किया जाता है, क्योंकि थोड़ा लाइसेंस दिया गया है कि ऐसे प्रकार के लोगों को इच्छाएं पूरी करने के लिए यू कैन एटलीस्ट ईट मीट, बट अंडर सम रेगुलेशंस, दैट इज अ कंसेशन नॉट अ रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये हमने ये चर्चा की थी पिछले क्लास में। और पुराणास ऑफ पैशन और पुराणास इन द मोड ऑफ गुडनेस, तो ये सारी चीजें हमने बताई। सत्वगुण के पुराण क्या बोलते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो और भगवान को प्रेम करो, ये हमारे दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ लव। तो इसके बाद से आज हमारी चर्चा शुरू होगी। तो लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन। तो बेसिकली अभी अगर आपसे हम पूछा जाएंगे तो बहुत लोगों की इच्छा ये रहती है कि अगर भगवान है भी या नहीं, और अगर भगवान है तो बहुत सारे भगवान है। तो अगर भारत में अगर हम देखने जाएं, इफ वी सी इन इंडिया सिचुएशन, तो हमारे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में भी देखें या हमारी भी टेंडेंसी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया आल्सो वी सी दिस टेंडेंसी, कि जितने भीड़ रहती है ना हमारे पूजा घर में, जितनी भीड़ भड़कता रहेगी उतना हमको खुशी होती है। अरे भाई सबको हमने संतुष्ट किया है। कोई अगर ये भगवान निकल गए तो हमें भी पता नहीं कि कौन असल में भगवान है। तो शायद ये माता भगवान है, ये बाबा भगवान है, ये देव भगवान है, सबकी फोटो हमारे यहाँ पर रहती है, सबकी फोटो रहती है, राइट। तो हमें भी पता नहीं कौन भगवान है। तो अगर मान लीजिए किसी को अगर हमने दुख पहुंचा दिया, अगर इसको हटा दिया, ये भगवान नहीं हुए, वो हो गए, तो सबको खुश करने के लिए हम थोड़ा 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 फूल चढ़ाते रहते हैं, ये करते रहते हैं। तो जितनी भगवान रहेंगे उतनी कृपा रहेगी, हम ये सोचते हैं। तो हमारा सिंपल मैथमेटिक्स चलता है, एज मनी डेमिगॉड्स एज मनी कृपा। और भगवान कृष्ण को भी, इवन कृष्ण को भी हमने ऐसे ही देखा था, यार सबके पार्टी में ये भी है। मॉल में जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, उस तरह से ये भी भगवान है, ये भी देव है, वो भी देव है, सबको खुश करके रखना है, किसी को दुखी नहीं करना। अरे कौन जाने कौन भगवान निकल जाए इनमें से। तो हमारा पहला तो प्रश्न ये होता है कि भगवान एक है या कहीं है, बहुत सारे भगवान है, या और तो और अगर हम पूछें बात करने जाएंगे अगर कि हरे कृष्णा वाले, क्योंकि इस्कॉन में अगर आए हैं हम, तो हमें भी पता है भाई हरे कृष्ण वाले क्या बोलने वाले हैं। ये बोले कृष्ण भगवान है। और अगर हम किसी और सोसाइटी में जाएंगे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहां पर जाएंगे बोलेंगे ये देव भगवान है, ये भगवान है, ये माता रानी भगवान है, ये भगवान है। तो जिसके पास जाओगे वो अपना प्रोडक्ट बेचेगा, हमारी चेतना वही रहती है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द फैक्ट। वही आज हम इसकी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि एक्चुअली क्या ट्रूथ है, कि इस्कॉन में आकर हम क्या करने वाले हैं। वी आर नॉट टेलिंग दिस क्योंकि हम भगवान को फॉलो, कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, नो, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। उसी को आज हम पेश करने जा रहे हैं। वी आर प्रेजेंटिंग टू यू व्हाट आर ऑल दीस थिंग्स, हाउ लॉजिकली शास्त्रिकली वी कैन प्रेजेंट दैट हाउ कृष्णा इज गॉड, राइट। तो शास्त्रों में एक स्टेटमेंट आता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान सिर्फ एक है और द्वितीय कोई और नहीं है। एंड दिस इज सेम स्टेटमेंट इज रिपीटेड इन एवरी स्क्रिप्चर्स। आप इस्लाम देखें कि अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह महान है, अल्लाह एक ही है, उसके अलावा और कोई भगवान नहीं है। और कोई अगर ऐसी पूजा करता भी है बहुत सारे, इसीलिए एक क्राइसिस आता है दूसरे रिलीजन्स में और सनातन धर्म में। वो सोचते हैं कि ह्यूमन सनातन धर्म इज पॉलीथिस्टिक रिलीजन। पॉलीथिस्टिक मतलब क्या, भगवान एक नहीं है, सब है भगवान, विच इज रॉन्ग आइडिया। इवन क्रिश्चियनिटी थिंक्स कि सनातन धर्म या ये हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, जबकि क्रिश्चियनिटी सेज दैट hallowed be thy name, hallowed be thy name, there is only one god and love him by your heart and soul. Actually speaking, even सनातन धर्म is also monotheistic, एक ही भगवान है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी हम देखें एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये शास्त्रों में कल्पना है, लेकिन हमारी एडुकेशन हमें नहीं मिल रही है। इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, वी आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। हमें पता नहीं कि भाई भगवान एक है या कितने सारे। तो इसमें प्रॉब्लम हमारी है, ना कि शास्त्रों की। तो सीखने का दायित्व किसका है, इट इज लाइबिलिटी ऑफ अस, नॉट एनीबडी एल्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो बेसिकली बहुत लोग बोलेंगे कि अरे श्रद्धा होनी चाहिए, जिसमें भी श्रद्धा रखो। अरे श्रद्धा होगी तो भगवान मिल जाएंगे ना, किसी पे भी श्रद्धा रखो, तुम्हें भगवान दिखेंगे, उसमें तुम्हें भगवान दिखेंगे। तो आपकी श्रद्धा किसमें है, आपकी श्रद्धा जिसमें भी रहेगी वो भगवान है। तो अगर आपसे बोला जाए, सिंपल सी एक चीज बात करते हैं कि इन इन आवर कैबिनेट, इन आवर कैबिनेट मिनिस्ट्री, आपसे अगर कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो बोले श्रद्धा होनी चाहिए, जिस पे श्रद्धा रहो वो प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर किसी से पूछे
पोल ले रहे हैं। जैसे अभी मोहित सेठ जी हैं, तो मोहित सेठ जी को पूछा हमने कि श्रद्धा किसमें, आपकी श्रद्धा किसमें है, कौन प्राइम मिनिस्टर है? तो बोले कि मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी है प्राइम मिनिस्टर। ओह अच्छा, तो स्मृति ईरानी प्राइम मिनिस्टर है। अगर किसी और से पूछा जाए, जैसे केशव जी हैं, तो अब केशव जी बोलेंगे कि अरे मुझे लगता है माय फेवरेट इज अमित शाह। तो वो भगवान है, वो प्राइम मिनिस्टर है। तो आपके कहने और मेरे कहने से प्राइम मिनिस्टर बदलने वाला नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो वी हैव टू लॉजिकली कन्विंस, तो शास्त्रिकली समझना, लॉजिकली समझना, ये सारी चीजें अगर हम समझेंगे तब हमें समझ में आए कि हमारे आपके ओपिनियन से हम वोट करके भगवान को चूज नहीं कर सकते। द नॉलेज, द फैक्ट इज फैक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा कि श्रद्धा से हम भगवान को चूज नहीं करते कि किस पे भी किसी की फेथ हो, दैट मीन्स दैट ही इज थिंकिंग ऑफ गॉड। नो, इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल लॉजिक एंड ये। तो बेसिकली अगर हम एग्जांपल दें यहाँ पर, इफ वी स्टडी, तो 1 सेकेंड, तो हियर वी गो, जस्ट अ सेकेंड। तो बेसिकली अगर हम भगवान की डेफिनेशन की बात करें, we'll be going to that definition. तो as per the definition, if you remember, हमारा जो पहला क्लास हुआ था भगवत गीता, कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता में, तो हमने पहले क्या बताया था, व्हाट इज फुल नॉलेज। नॉलेज का किसी को अगर याद है, व्हाट इज नॉलेज, यू कैन शेयर ऑन चैट बॉक्स। नॉलेज का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्चुअली नॉलेज मीन, किसी को अगर याद है। नॉलेज मीन्स, बताइए। नॉलेज का मतलब है नॉलेज ऑफ, यस, कैलाश इज रिप्लाइंग, गॉड, सोल एंड yes, matter. Kirtik is replying. Pooja ji, Chiranjit, Sudeshna ji. I'm thankful to all of you. Ishika, yes. सबको याद है that सुलक्षणा जी, अनिकेत, मैटर, स्पिरिट एंड गॉड। तो उसी तरह से थैंक यू सो मच, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, यू आर एबल टू रिमेंबर। अभिजीत, दीपांकर, अनिकेत, राइट, थैंक यू। तो ओके, यू कैन स्टॉप रिप्लाइंग नाउ। तो कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो बेसिकली भगवान किस प्रकार से परम है, तो नॉलेज ऑफ मैटर, यानी कि हमने ये बताया था कि फुल नॉलेज, अगर पूरी तरह से अगर भगवान को जानना है तो हमें 3 चीजों से जानना पड़ेगा। क्या से? नॉलेज ऑफ मैटर, नॉलेज ऑफ स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। तो इस हिसाब से कहा जाता है कि 7th चैप्टर में ये सेक्शन आता है, ज्ञानम विज्ञानम सहितम। ज्ञान मतलब जड़ प्रकृति, जो कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो भी हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, वो मैटर के नॉलेज में आ रहा है। लेकिन स्पिरिट का नॉलेज नहीं मिलता हमें वहां। स्पिरिट का नॉलेज भगवत गीता हमें सिखाती है। तो दैट इज व्हाट इज रियलाइजिंग दैट स्पिरिट, दैट इज विज्ञान। और अगर दोनों के बारे में अगर समन्वय हो, उसे कहा जाता है पूर्ण ज्ञान, राइट। तो दैट इज लाइक पॉसिबल ओनली व्हेन वी अंडरस्टैंड कृष्णा एज बोथ। तो अगर हम देखें, बेसिकली भगवान का मतलब वो है जिनसे सब कुछ आ रहा है इस संसार में। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम गॉड, राइट, एग्रीड। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जिससे सब कुछ आ रहा है वही तो भगवान है। अगर शास्त्र कहे कि इससे सब कुछ आ रहा है, तो वो भगवान है। तो थैंक यू सो मच, सो मेनी पीपल आर रेजिंग देयर हैंड्स। तो भगवान का मतलब है जिनसे सब कुछ की उत्पत्ति हुई है। उसी प्रकार से दैट मीन्स मैटर और स्पिरिट, मैटर के भी स्रोत वो है, स्पिरिट के भी स्रोत वो है। तो एक्चुअली भगवत गीता में 7th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण पहले 4 श्लोकों में बताते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना में प्रकृति अष्टधा। तो बता रहे हैं भगवान की अपरा परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति है। इंफीरियर एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी। इंफीरियर एनर्जी यानी कि देखिए, हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, मैटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान अभी 7th चैप्टर में बताते हैं मैटर कहां से आ रहा है। मैटर इज भगवान इंफीरियर एनर्जी, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये किसकी? भगवान की निकृष्ट एनर्जी है। भगवान खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। आज तक किसी भी देवता ने, किसी भी देव ने, भले ही बड़े से बड़े देवता क्यों ना हो, कभी भी किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। किसी भी शास्त्र में अगर हम देखें, हम नहीं देखेंगे। जनरली अगर आप देखेंगे, ये सारी जो कहानियां आती हैं कि अरे इस शास्त्र में तो लिखा हुआ है ये भगवान है, दूसरी जगह लिखा हुआ है माता रानी भगवान है। ये क्यों है? ताकि ऐसे फेथफुल वर्शिपर्स को उस देवता में श्रद्धा उत्पन्न हो सके। क्योंकि उससे पहले तो वो किसी को भी पूज नहीं रहा था, लेकिन उसको भी होप अगर मिलना चाहिए, किसी को भी अगर फेथ, किसी को अगर किसी में फेथ लाना है, तो उनका ग्लोरिफिकेशन दिया जाता है। अरे ये व्यक्ति इतने महान है, पता है इनके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं। लेकिन उसके ऊपर का नॉलेज अगर जानना है, तो आगे के स्क्रिप्चर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो फुल नॉलेज तभी पता चलता है जब हमें उनसे ज्ञान मिले जो इन सब चीजों को जानते हैं। स्पेशली आचार्य जो होते हैं, वैष्णव आचार्य जितने भी हैं इस संसार में, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, जितने भी आचार्य, इवन श्री शंकराचार्य, दे आल्सो सेड कि गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्योंकि इन्होंने पूरे शास्त्र पढ़े हैं। ये जब हमें नॉलेज देते हैं,
तब हमें फुल नॉलेज मिलता है। और अभी हम जो स्क्रिप्चरल पहला लॉजिक जो ले रहे हैं स्क्रिप्चर से, शास्त्रों से, तो लॉजिकली तो छोड़ दीजिए, शास्त्रों से केवल नॉलेज लेंगे। कृष्णा हिमसेल्फ इज डिक्लेयरिंग मैं इन सब का स्रोत हूँ, राइट। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, अनकॉन्शियस है, ये क्या है, परा प्रकृति है। लेकिन इसके बढ़कर और भी आगे बता रहे, देखिए किस प्रकार से क्रिएशन होता है। आप सबको पता होगा कि साउंड से क्या आता है, ईथर, हमने सुना है बचपन में, है ना। टच से एयर आता है, फॉर्म से फायर आता है, टेस्ट से वाटर है, एंड स्मेल से अर्थ। ये सब इन प्रकृति, इस सब पदार्थों का स्रोत है। भगवान ने सृष्टि किस प्रकार से क्रिएट की कि इन्हीं से रिलेटेड पदार्थों से भगवान ने साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट और नोज, ये जो हमारे सेंस रिसीविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो जिस इंद्रियों से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी भगवान ने एक्सेप्ट बनाए हैं। तो ये सब, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं। हमारी लाइक ज्ञान इंद्रियां, साथ ही साथ ज्ञान इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स ऑफ, मतलब जिस पे हम ऑब्जेक्ट हैं, लाइक नोज, टंग एंड आईज, ईयर्स, एज वेल एज अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जिससे ये सारी चीजें, जिसके लिए ये सारी चीजें बने हैं। ऑफ कोर्स ये आपको थोड़ा भी मुश्किल लगेगा, श्रीमद् भागवतम में ये डिस्क्रिप्शंस आते हैं, तो हेयर वी आर नॉट गोइंग इन मच डिटेल। तो बट हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान ही इन सब चीजों के स्रोत हैं, भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं। और आगे क्या बता रहे हैं, अरे डेड मैटर को तो मैंने ही बनाया, कॉन्शियस लिविंग एंटिटीज को भी मैंने ही बनाया। जैसे स्पिरिचुअल एनर्जीज, उसके भी स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण। वो जब कारण सागर में बैठ लेटे रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड एक एक लोमकूप से उनसे निकलते हैं, और एक एक ब्रह्मांड में फिर वही विष्णु रूप में, गर्भोदक्षाई विष्णु रूप में एंटर करते हैं, और सारे जीवों के परम पिता परमेश्वर, वो खुद कहते हैं अहम बीज प्रतः पिता, आई एम द फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, ही हिमसेल्फ सेज इन भगवद गीता। ये सारे प्रमाण कहां से दे रहे हैं हम, भगवद गीता से। तो भगवद गीता में इटसेल्फ आता है ये सारी चीजें। तो अगर हम देखें, लॉर्ड सेज क्या, मैटेरियल वर्ल्ड मैंने बनाया, प्रकृति 7 चैप्टर के ये सारी चीजें हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एंड इवन द स्पिरिचुअल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसका भी स्रोत कौन है, मैं हूं। यानी कि आत्मा को भी मैंने बनाया है, आध्यात्मिक जगत को भी मैंने बनाया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स एज वेल एज सोल्स। बनाने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। He himself says, declares in भगवद गीता, तो why not to believe it कि भगवान कृष्ण कौन है। तो स्पेशली और भी डिटेल में अगर हम जाएंगे, भगवान बताते हैं कि भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, और क्या है, तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति में संविद, संधिनी और लादिनी शक्ति, ये 3 शक्तियां आती हैं। बहिरंग शक्ति में आती है कौन, दुर्गा देवी, ये मटेरियल वर्ल्ड जिससे चल रहा है, जिस मटेरियल वर्ल्ड, और जिसमें साथ ही साथ पंच महाभूत, ये जो हमने पहला वाला जो कॉन्सेप्ट्स बताया, 5 चीजें भगवान से बनी है। और हम कौन से हैं, हम जो आत्माएं हैं, वी आर इन द विच चैप्टर, ये सब 7 चैप्टर से मैं रिलेट कर रहा हूँ, 7 चैप्टर भगवद गीता। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये सारी चीजें मुझसे ही बनी है, लेकिन आत्मा जो है, दिस मटीरियल एनर्जी, वी आर इन द स्पिरिट सोल्स, आत्मा जो है मटीरियल एनर्जी है, वो तटस्था है। इसके पास ऑप्शन है कि मैं अंतरंग शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी की शरण लूं, या फिर दुर्गा देवी की शरण लूं, मैं किसकी शरण लेना चाहता हूँ, उसके पास ये ऑप्शन है। तो दिस ऑप्शन इज गिवन टू ओनली अ स्पिरिट सोल। तो ये सारी चीजें भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, और इतना फुल्ली डिक्लेयर कहाँ किसी देवता ने किया है क्या, कि मैं भगवान हूँ। कोई इंद्र, चरण, चंद्र, वरुण, या बाकी 4 लोकपाल जो भी हैं, किसी ने भी डिक्लेयर किया है। लॉर्ड शिवा इवन ही नेवर डिक्लेयर्स दैट आई एम द सुप्रीम। लॉर्ड शिव के भी आराधित देव कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। और 7.7 में तो डायरेक्टली वो कहते हैं, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन थ्रेड। 7 चैप्टर में सारी चीजें आएंगी कि जिस प्रकार मोती इस संसार में टिके हुए हैं, किसके ऊपर, धागे, मोती धागे पर ऊपर टिके हुए होते हैं, भले ही धागा दिखता नहीं है। तो कोई भले ही जरूर कहे कि अरे भगवान को देखा तो नहीं है हमने, तो दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अरे अगर माला में भी कभी धागा नहीं दिखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माला बेसलेस है। उसी तरह से भगवान इस संसार में देख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ही ओनली इज द सस्टेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, राइट। तो यहाँ पर हमने शास्त्रीय कंक्लूजन यहाँ पर एक देखा। दूसरा कंक्लूजन देखिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉम वन शास्त्रास, नो वन इज इक्वल, नो वन इज अबव हिम, असम ऊर्ध्व। शास्त्रों में कहा जाता है असम ऊर्ध्व, ना उनसे कोई समान है, ना उनके ऊपर है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो ये भगवान श्री कृष्ण का 7.7 में डिक्लेरेशन है, राइट। तो
और भी 7 चैप्टर में तो और भी एक के बाद एक अपनी अपनी विभूति के बारे में बताते आते हैं कि ये मैं हूँ बीज पिता, मैं आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द लाइट ऑफ सन, आई एम द सिलेबल ओम, मैं ही ओम हूँ, आई एम द साउंड इन ईथर, आई एम द एबिलिटी इन मैन, आई एम द नेचुरल फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ, आई एम हीट इन फायर, आई एम लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स। ये सारी चीजें भगवान कहाँ पे बता रहे हैं? 14 एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं अरे इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उतनी सारी चीजें बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि चैप्टर बड़ा हो जाएगा, भगवत गीता खत्म नहीं होगी, अभी युद्ध शुरू होने वाला है। तो बेसिकली ये है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से डिक्लेयर करते हैं कि इवन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर दैट कंट्रोल दिस वर्ल्ड आर आल्सो अंडर हिज कंट्रोल। ये प्रकृति के 3 गुण जो हैं ये भी मेरे अंडर में हैं। तो ये तो हमने एक लॉजिक दिया। तो दिस इज वन फ्रॉम शास्त्रों का हमने एक लॉजिक देने की कोशिश की। तो दूसरा लॉजिक हमने ये बताया था कि किस प्रकार से अगर हम देखें तो इवन 8 ये जो 18 पुराण है, 18 पुराण में भी भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों के हिसाब से, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉजिक फ्रॉम शास्त्रस। थर्ड अगर हम देखें, थर्ड प्रमाण फ्रॉम शास्त्र, शास्त्रों में से और भी बहुत सारे पुराण हैं तो प्रमाण है, तो एक और प्रमाण अगर हम देखें तो दिस प्रमाण कम्स फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि आई विल शोइंग दिस स्लाइड राइट नाउ कि ब्रह्मा जी he says in ब्रह्म संहिता, what he says, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। दिस इज ये ब्रह्म संहिता जो शास्त्र है बहुत ही प्रामाणिक शास्त्र है। ईश्वर परम कृष्ण ही इज टेलिंग, देखिए इस संसार में जिनका पहला जन्म हुआ, हु इज द फर्स्ट पर्सन हु टुक बर्थ? ब्रह्मा हिमसेल्फ। लेकिन ब्रह्मा जी भी अपने पिता विष्णु को नहीं बोल रहे कि विष्णु इज सुप्रीम, ही इज टेलिंग ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और सच्चिदानंद मतलब क्या? हड्डी मांस का शरीर नहीं है उनका, हड्डी या मांस से हमारा शरीर बना हुआ है, लेकिन भगवान का शरीर उसे नहीं बना हुआ है। वो क्या बोल रहे हैं? परम भगवान। देखिए भगवान भी बहुत ग्रेडेशन के होते हैं। अभी अगर देखेंगे जैसे छोटा डॉन बड़ा डॉन है ना, कभी कभी बोलते हैं ना अरे ये छोटा डॉन है, थोड़ा उसके ऊपर लेवल में जाएंगे ये थोड़ा बड़ा लेवल का डॉन है, उसके ऊपर के लेवल के लोगों को जाएंगे और थोड़ा बड़ा डॉन है ना। तो हर गली में एक ना एक छोटा छोटा डॉन होता है, लेकिन उसका भी एक ऊपर का एक बॉस रहता है। लेकिन हु इज द परम बॉस, परम डॉन? कैसे समझे? तो ये कृष्णा यहाँ पर डिक्लेयर किए जा रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा, ईश्वर परम कृष्णा। हम भी इस संसार में थोड़े थोड़े ईश्वर हैं। अगर हम अपने जीवन में अगर कल्पना करेंगे, हम आत्माएं हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी थोड़ी थोड़ी ईश्वरी की टेंडेंसी है। हम भी कुछ कुछ कंट्रोल करते हैं। हो सकता है हम ऑफिस कंट्रोल कर रहे हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी वाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने किचन को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे अंदर भी कुछ तो पोटेंसी है ईश्वर की, लेकिन हमारी लिमिटेड पोटेंसी है। हमारी पूरी की पूरी पोटेंसी ऐसी नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड को हमने कंट्रोल करके रखा है। लेकिन यहाँ पर देयर इज अ ग्रेडेशन ऑफ ईश्वर्स। इस तरह से ईश्वर, ब्रह्मा को भी लॉर्ड शिवा को भी ईश्वर कहा गया है कि ईश्वर तो शिव है, शास्त्र में कहा गया ईश्वर शिव है, लेकिन उनके ऊपर भी कोई है क्या, ये हमें जानना है। या फिर और भी अगर देखने जाए, देवी दुर्गा इज ऑल्सो ईश्वर, क्योंकि वो भी कुछ कंट्रोल कर रही है इस प्रकृति में, 3 गुणों के द्वारा वो कंट्रोल कर रही है। ब्रह्मा जी इज ऑल्सो ईश्वर, लेकिन परम ईश्वर कौन है? तो परम ईश्वर की उपाधि इनको दी गई है। परम ईश्वर की उपाधि देने वाले कौन है? लॉर्ड ब्रह्मा। तो ही सेज दैट हु इज द परम ईश्वर? परम ईश्वर इज लॉर्ड कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर हमारे हार्ड मास के हिस्से नहीं है। और अनादिर आदिर गोविंद। अरे कोई बोलेगा ये कृष्ण कौन कृष्ण? ये हमारे गली में रहने वाला वो व्यक्ति, वो कृष्ण? या मान लीजिए आपके घर में कोई अगर कन्हैया नाम का कोई रहता होगा आसपास में, ना बहुत लोग कन्हैया नाम के, कौन से कृष्ण? नहीं, इसे अनादिर आदिर गोविंद है। उसका नाम क्या है? उनका एक और नाम है, उस नाम नेम इज गोविंद। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हिज अनदर नेम इज गोविंद। तो यहाँ पर गोविंद और तो और सर्व कारण कारणम, पूरे ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता वही है। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ हु? लॉर्ड ब्रह्मा। और तो और अगर हम देखेंगे ब्रह्म, ये तो एक स्टेटमेंट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट व्यासदेव भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए बहुत बार लोग पूछते हैं कि अवतार, अरे हमने तो सुना है विष्णु से कृष्ण आए, कृष्ण से विष्णु नहीं आए, राइट? बहुत लोग का डाउट रहता है ना। अवतार, इतने सारे अवतार हैं कि कभी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, ये अवतार, वो अवतार।
लेकिन जब ये श्रीमद् भागवतम हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पुराण है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण है, सत्वगुणी में सबसे इंपॉर्टेंट, राइट, वहां पर जब ये थर्ड चैप्टर आता है, थर्ड चैप्टर में डिस्क्रिप्शन आते हैं ऑलमोस्ट लाइक 22-25 अवतार, 24 अवतारों के, है ना, बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया जाता है। लेकिन अंत में ये बताते हैं एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे ये सारे जो अवतार हैं, इसमें अवतारी कौन है? हु इज द अवतारी? हु इज द अवतारी? एते च अंश कला, यानी कि ये तो भगवान के एक पार्ट एंड पार्सल है। ही इज नॉट द सुप्रीम वन, बट सॉरी लाइक दीज डेमीगॉड्स, दीज अंश, ये सारे भगवान के अंश हैं। अवतारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जैसे एक उदाहरण देते हैं अभी आपके सामने, देखिए बहुत लोगों का ये डाउट रहता है, कॉमन डाउट है। तो अभी आप लोग बोलेंगे अरे हमने बी आर चोपड़ा के सीरियल में तो ये देखा था, या फिर अगर ये सारे इतने सारे सीरियल देखे हैं, इतने सारे पुराण में हमने सुना है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमाण अगर देखें, क्योंकि मैक्सिमम लोग शास्त्र पढ़ते पढ़ते हैं नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर से सुन उनके सीरियल वीरियल बना देते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्शन की जगह मिसकॉन्सेप्शन ला देते हैं कि अरे उस सीरियल में तो ये देखा था हमने। तो बेसिकली वेद व्यास सेज कि एते च अंश कला, ये सारे जो अवतारों के बारे में अभी मैंने बताया, वो सब क्या है? उनके अंश और कला है। यानी कि एक जैसे हमारे हाथ होते हैं या हमारे पार्ट है, तो ये सब भगवान के ही अंश हैं। लेकिन इनमें से भी भगवान कौन है? हु इज द सुप्रीम? हु सेज? वेद व्यास सेज, है ना, इन सुखदेव, और दिस डिस्क्रिप्शन हैपेंस इन सुखदेव गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज, शौनक आदि ऋषि एंड लाइक शौनक आदि ऋषियों के बीच में और सूत गोस्वामी के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है। तो वहां पर यह आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये यहाँ पर आता है। जैसे एक उदाहरण आपको देंगे, एक उदाहरण आपको अगर दिया जाए, कभी अगर अमिताभ बच्चन की हमने मूवी देखी अगर, राइट, तो इतनी सारी अमिताभ बच्चन की मूवी है, सो मेनी मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन। जैसे कभी अमिताभ बच्चन शराबी बन के आते हैं, या फिर कभी अमिताभ बच्चन शहंशाह बन के आते हैं, या फिर कभी अमिताभ बच्चन है या बेताज बादशाह बन के। तो अभी हर मूवी में हर बार अलग अलग अमिताभ बच्चन अलग अलग किरदार में। लेकिन हु इज अमिताभ बच्चन इन रियलिटी? अगर आपसे पूछा जाए हु इज अमिताभ बच्चन इन रियलिटी, ही ऑल्सो हैज हिज फैमिली। उनकी एक वाइफ है जया भादुरी है, उनके बच्चे हैं अभिषेक है, या उनकी एक लाइक डॉटर इन लॉ है ना, ऐश्वर्या राय है। तो इतने ऐश्वर्या राय बच्चन, तो इतने सारे, उनका भी खुद का भी तो फैमिली है। भले ये बोलेगा अरे ये अरे अमिताभ बच्चन मतलब तो शहंशाह है, शराबी है, ये है, बट एक्चुअली उनकी भी तो खुद की भी एक लाइफ है। तो हु इज ही इन दैट पर्सन? तो उसी तरह से ये सारे जो अवतार हैं, भगवान कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए, मतलब सब कभी भी अगर यूनिवर्सल डिसबैलेंस आता है, तब भगवान क्या करते हैं? खुद ही इज द अवतारी, कृष्णा इज द अवतारी। लेकिन नाउ अगर हम देखें, ही इज ओरिजिनल रोल इज, जैसे अमिताभ बच्चन का ओरिजिनल रोल इज व्हाट? कृष्णा। बट जब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किरदार किरदार लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, तो कभी परशुराम बन के, कभी राम बन के, कभी वराहदेव बन के, कभी मत्स्य अवतार बन के, कभी कूर्म अवतार बन के, तो ये सारे भगवान अवतार लेते हैं। तो बेसिकली ये दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द शास्त्रिक प्रमाण। तो यहाँ पर हमने एक और शास्त्रिक प्रमाण के बारे में चर्चा की कि दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दे आर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस। तो इवन अभी एक ये तो चलो अभी तक हमने ये डिस्कस किया, और भी अगर हम डिस्कस करें तो अभी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ये होता है। देखिए अवतार, अभी भगवान को भी अवतार बहुत बार इसीलिए बोला गया है कि बोलते हैं ना बहुत बार कृष्ण तो अवतार है, बहुत बार बोला गया कृष्ण अवतार है, लेकिन ही इज अवतारी। लेकिन अवतारी होने के बावजूद ही इज द सोर्स ऑफ ऑल अवतार, लेकिन उनको भी तो इस जगत में आना पड़ता है। तो इन दैट सेंस कभी कभार हम लोग ये बोलते हैं कि कृष्णा इज ऑल्सो एन अवतार, बट ही इज नॉट एन अवतार। क्योंकि ऊपर से नीचे आना, अवतार का मतलब क्या होता है? फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर ऊपर से कोई नीचे आता है, देन दैट मीन्स कि इन दैट वेज ऊपर से कोई नीचे आने वाला, दैट मीन्स इज अवतार, अवतार है वो। लेकिन उसमें भी कोई ना कोई सुप्रीम है। हु इज दैट सुप्रीम पर्सन? कृष्णा इज दैट सुप्रीम पर्सन। ये सारे शास्त्रों में पुराण है। तो अभी तक हमने ये एंडोर्स किया, एंडोर्समेंट अभी तक पहला जो प्रमाण आया, राइट नाउ द फर्स्ट लॉजिक वी गेव, सॉरी, द फर्स्ट लॉजिक वी गेव इज फ्रॉम वेरियस शास्त्रस, राइट। दूसरा लॉजिक अगर हम देखें तो दिस इज फ्रॉम लॉजिक कि हाउ
देयर मस्ट बी अ पर्सन बिहाइंड, कोई ना कोई, देयर मस्ट बी सम पर्सन हु इज मैनेजिंग, कोई ना कोई गॉड होंगे, एंड दे अदर्स आर गॉड्स. कृष्णा इज गॉड एंड अदर्स आर गॉड्स. गॉड और गॉड्स में क्या अंतर होता है? वन इज विद अ कैपिटल जी, ही इज द सुप्रीम नाउन, बट उनके अंडर में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री चल रही है, कहते हैं 33 करोड़ करोड़ देवता की, दे आर कंसिडर्ड गॉड्स. दे आर छोटा छोटा डॉन एंड बड़ा डॉन, है ना. तो अभी सेकंड लॉजिक अगर हम देखने जाएंगे, व्हाट इज दैट सेकंड लॉजिक? तो अगर व्हाट इज दैट, एक बार की बात, एक एग्जांपल देते हैं. कोई एक मान लीजिए एक कंपनी का मालिक है, मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है, उसके बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे ब्रांचेस हैं. अभी उसने कलकत्ता में भी एक ब्रांच खोल के रखा है, और अभी मान लीजिए इफ दैट ओनर ऑफ द कंपनी ही इज स्टेइंग एट वेयर, वो कहाँ पर रह रहा होगा? কোথায় থাকছে? সে থাকছে হয়তো স্যান ফ্রান্সিসকোতে, তার বাড়ি ওখানে, কিন্তু वो নিজে थोड़ा নিজের অফিস সামলাবে, वो क्या कर रहा है? वो हॉकी, वो गोल्फ खेल रहा है. अपना काम करने के लिए तो वो थोड़ी ना अपना, मान लीजिए उसका सेंटर कलकत्ता में है या बॉम्बे में है, लेकिन वो कैसे काम संभालेगा? हाउ? उसका संभालने का तरीका क्या होगा? ही विल मैनेज इट थ्रू अ सीईओ, राइट? तो सीईओ उसका बैठा होगा यहाँ पर, और अब सीईओ का काम क्या होगा? उसके कंपनी में मान लो उसी का ब्रांच है, माइक्रोसॉफ्ट का, सो मेनी, ब्रिटिश एयरवेज, विचेवर कंपनी. अभी उसका काम क्या है? सीईओ का काम क्या है? किसी एक कंपनी, किसी एक व्यक्ति को लेना, किसी को डिप्यूट करना, किसी को देना, किसी को रिलीज करना. तो ये कौन करने वाला होगा? हिज मेन एक्टिविटी इज मैनेजिंग द कंपनी. तो शायद वो फाइनेंस भी देख रहा होगा, वो एचआर भी देख रहा होगा, वो अकाउंट्स भी देख रहा होगा. सो मेनी डिपार्टमेंट्स ही विल बी सीइंग. किसी को रिक्रूट करना है, किसी को छोड़ना है, किसी को निकालना है, किसी को एचओडी बनाना है, ही विल बी मैनेजिंग, टेकिंग केयर. तो अभी जो कंपनी में काम करने वाले हैं, उनको तो लगेगा भाई यही हमारे मालिक है, ही इज, अरे सर्वे सर्वा तो आप हैं भाई, आप आपकी वजह से, आपकी कृपा से ही सब दुकान चल रही है हमारी. तो अगर ऐसा व्यक्ति, ही इज थिंकिंग, जो भी ऑफिस वाले हैं, कि सीईओ हमारे मालिक है, लेकिन जब बुलावा आएगा, अभी ऑफिस वाला फोन, अभी मालिक फोन किया, हेलो, आई वांट टू कम टू कलकत्ता, so please book a room for me, I will be coming by 26th of November. तो अगर 26 नवंबर को आने वाले हैं, तो अभी वो सीईओ वाला परेशान हो जाएगा. तो अरे जल्दी जल्दी बुकिंग वुकिंग करना है भाई. और साथ ही साथ जब वो फ्लाइट से लैंड करने वाले होंगे मालिक, तब क्या करेगा? वो जाके इमीडिएटली वो जाएगा रिसीव करने, स्वयं सीईओ रिसीव करने जाएगा. तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब मालिक आता है तो सीईओ हिमसेल्फ रिसीव करने जाता है. उसी प्रकार से अभी आप किसी को लग सकता है कि अभी किसी को लग सकता है कि जब मालिक सीईओ मालिक हमारे ऑफिस में पहुंचा, मालिक मेन पर्सन फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, ही हैज कम, और सीईओ भी आए. अभी कोई अगर विश्वास करने लगे, अच्छा सर, सीईओ ने नया आदमी को डिप्यूट किया है ना, ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, क्योंकि सीईओ का काम क्या है कि सब नए आदमी को लेना और छोड़ना. तो वो कोई अगर सोचने लगे कि इस मालिक को भी वही लेकर आए, तब दैट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. अरे सीईओ के भी ऊपर है वो मालिक, है ना. तो भले ही कोई अगर सोचे कि सीईओ इस सर्वे सर्वा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई है. इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. अरे इतने सारे विष्णु के हम देखते हैं कि सो मेनी विष्णु इनकार्नेशंस आर देयर. जैसे इस संसार को चलाने के लिए 3 प्रकार की विष्णु मूर्तियां काम करती हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु. लेकिन इनके ऊपर भी है भगवान श्री कृष्ण. तो मालिक ने रखा है सीईओ को, ना कि सीईओ ने रखा है मालिक को. इनके ऊपर कौन है ये हमें समझना है. तो बहुत बार लोग समझते हैं कि विष्णु से कृष्ण है. नो, ओनर इज कृष्णा एंड विष्णु इज लाइक अ सीईओ. और सारा इस संसार का, यूनिवर्स का जो काम वाम है, अभी सबको भगवान ने देकर रखा है, और थ्रू सीईओ देकर रखा है. अब सीईओ जैसे विष्णु है, उन्होंने बाकी जो मेंटेनेंस का काम ही हिमसेल्फ टेक केयर्स, लेकिन क्रिएशन डिस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली वो खुद तो क्रिएट करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भी क्रिएट करने के लिए देते हैं, और डिस्ट्रक्शन में शिव जी को भी लगा के रखा है. तो ही इज लाइक, इवन दो ही इज अ सीईओ, उनके ऊपर भी कोई है. जैसे मालिक का अगर से ही इज जस्ट प्लेइंग हिज गोल्फ बॉल, ही इज जस्ट, ही डज नॉट मैनेज एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी इस संसार में कुछ पर्सनली मैनेज नहीं करते. हु इज मैनेजिंग? विष्णु. विष्णु हिमसेल्फ इज मैनेजिंग इन दिस वर्ल्ड. ही इज द लोकल कंट्रोलर, ही इज द लोकल सीईओ, राइट. तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं. तो ये सारी चीजें कहाँ पर एक्सप्लेन की गई है? अगर कोई भक्ति योग के शास्त्र अगर पढ़ता है, तब जाके वहां ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई. अभी अगर कोई कहे, अच्छा ये तो आप ये बात कर रहे हो कि ये तो चलो हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, बाकी धर्मों में क्या है? हाउ वी कैन रिलेट दीज थिंग्स कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड दिस गॉड इज कृष्णा ओनली. तो बाकी धर्मों में भी अगर हम देखें, जैसे अगर क्रिश्चियनिटी में इस द वर्ड ऑफ भगवान का नाम है क्राइस्ट, या फिर
अल्लाह, अल्लाह मतलब द मोस्ट लाइक मर्सीफुल, द मोस्ट सुप्रीम। तो अल्लाह अकबर बोला जाता है कि ही इज द मोस्ट बेनेवोलेंट, मोस्ट सुप्रीम। या फिर इवन जेहोवा, तो अगर जेहोवा भी है तो ही इज द मोस्ट लाइक सबसे अधिक दयालु, ही इज द जेहोवा। और क्राइस्ट इज द, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल। तो ये भगवान के भिन्न भिन्न नाम है। तो अगर आपसे कहा जाए कि हमारे सर के ऊपर जो सूर्य है, ही इज द हिंदू गॉड, ही इज द हिंदू सन। और अगर पाकिस्तान में कोई बैठा है अगर बोलने लगे कि ही इज, कौन कहता है ये हिंदुओं का सूरज है, ये पाकिस्तान का सूरज है। अगर अमेरिका में कोई बैठा है, ही इज अमेरिकन सूर्य, है ना। या फिर अगर कोई साइंटिस्ट बैठा हुआ है, ही स्टार्ट्स टेलिंग दैट ये सर दीज आर ऑल रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। ही स्टार्ट्स टेलिंग दैट एक्चुअली सन इज नथिंग बट द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कन्वर्टिंग इनटू हीलियम। तो इस तरह से अगर भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार के संज्ञाएं देते हैं एक सूर्य को, लेकिन है वो कौन? मटेरियल तो सेम है, राइट। हमने नाम डिफरेंट देख रखा है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति है, अगर व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, जैसे अगर कोई नाम है किसी का विक्रम, है ना, तो विक्रम है तो इसको विक्की बुलाते हैं कोई, है ना। या अगर ओए कुछ भी अगर हम उसको बुलाते हैं ना, ओए कांछा, है ना, नेपाली दिखता है वो, है ना, ओए कांछा, या फिर ओए केले का छिलका, या कुछ भी हम लोग बुलाते हैं। कितने नाम स्कूल्स में हम किसी को भी डालते हैं, किसी को भी नामकरण कर देते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति का इतना सारे नाम है, मम्मी कुछ लालू बुलाती है, मेरे प्यारा लालू, इधर आ। हर माँ अपने बच्चों को किसी एक पेट नेम से बुलाती है, अमर सोना, अमर चांदी, इस तरह से हम लोग बुलाते हैं। तो बेसिकली, लेकिन व्यक्ति तो वो सेम ही है, उसके नाम भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार से इस प्रकार इस संसार में भी भगवान जो है उनके भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन है वो एक ही तत्व, ही इज क्राइस्ट, ही इज कृष्णा। और एक्चुअली अगर देखें जीसस क्राइस्ट, तो फादर का नाम, जीसस क्राइस्ट के अगर नाम से अगर देखेंगे, जीसस इज द नेम ऑफ द सन, और फादर का नाम क्या है? क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट, फादर का नाम बाद में आता है, बेटे का नाम पहले आता है। जैसे अगर हम कहीं पे जाएंगे तो अगर कोई बोलता है आपका नाम क्या है, साउथ इंडिया में, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अरविंद राजू। अच्छा, अरविंद राजू, तो अरविंद किसका नाम है? अरविंद मेरा नाम है, राजू मेरा पापा का नाम है। अच्छा, और अरविंद राजू आगे अगर बोला जाए पूरा नाम क्या है? अरविंद राजू राय गुड्डा। अरविंद राजू रायगुड्डा। अच्छा, अरविंद राजू रायगुड्डा, रायगुड्डा मेरे गांव का नाम है। अगर गांव का भी नाम है आपके यहाँ पे? अच्छा, और पूरा और कुछ नाम भी है क्या एक्स्ट्रा? अरविंद राजू रायगुड्डा श्रीनिवासन। मतलब श्रीनिवासन किसका है? मतलब मेरे दादाजी का नाम है, मतलब मेरे परदादा जी। इस तरह से पूरा का पूरा नाम, इतना बड़ा बड़ा नाम होता है। तो बेसिकली किसी का नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है, जैसे उसी तरह से जीसस क्राइस्ट, तो वन इज द नेम ऑफ द सन, देन हिज फादर्स नेम कम्स। उसी तरह से जीसस क्राइस्ट, ही आल्सो सेज माय फादर लाइज इन हेवन एंड आई एम लाइक, बहुत सारे बाइबल में ऐसे स्टेटमेंट्स हैं कि आई एम लाइक अ शेफर्ड, आई एम लाइक अ लैम एंड माय फादर इज शेफर्ड। तो अब शेफर्ड किसको बोलते हैं? अभी शेफर्ड वहां पे ग्वाला वाला तो कोई होता नहीं था, तो ही हिमसेल्फ इज टेलिंग मेरे फादर कौन है? शेफर्ड है, ग्वाले है भगवान। ग्वाले हैं, डायरेक्टली बोल रहे हैं ग्वाले हैं। अब वो ग्वाले कौन है? गोपाल है, गोविंद है। तो देयर इज अ मेंशन, और इस तरह से ये दिस इज अ इनडायरेक्ट मेंशन। जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ कहते हैं कि इफ आई टेल यू रियली अबाउट, अगर मैं भगवान के बारे में बताना चाहूंगा तो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए इतने सारे चीजों के बारे में भगवान ने, जीसस क्राइस्ट ने लोगों को हिसाब से ये सारी चीजें दी हैं। ही हैज नॉट मेंशन्ड क्वाइट एवरीथिंग इन डिटेल, जितना लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे उतना। और तो और अगर इस्लाम में भी देखेंगे, इस्लाम में क्या आता है कि देयर इज अ मेंशन दैट Allah is darkish in complexion, blackish in complexion, and he gave this dark complexion to the Arabs. अभी सोचिए, और वहां पे डिस्क्रिप्शन आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इस्लाम इज अ इम्पर्सनलिस्टिक रिलीजन, बट दैट इज नॉट द केस। इस्लाम इज नॉट एन इम्पर्सनलिस्टिक रिलीजन, रादर इस्लाम इज ऑल्सो पर्सनल। लेकिन मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस अगर हम इस्लाम में देखने जाएंगे वो इम्पर्सनल की ओर डायरेक्ट करते हैं, बिकॉज पीपल कुड नॉट टेक इट दैट टाइम। उस तरह के ऑडियंस वैसे नहीं थी। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें, देयर आल्सो इज मेंशन्स अल्लाह's eyes, अल्लाह's feet, इस तरह से मेंशन आता है। और तो और बहुत सारे, इवन लाइक जूडिज्म में भी बहुत सारे ऐसे मेंशन है। मोसेस जाके देखते हैं कि देयर वाज लाइट, बुशेस से लाइट आ रहे हैं, लेकिन ही गोस देयर, ही मीट्स लॉर्ड, लेकिन वहां पे और ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हर धर्म में एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से बताया गया। और तो और अगर सिखिज्म में भी देखें, अब सिखिज्म में तो भर भर के पड़े हुए हैं, भर भर के, है ना। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर हम देखें तो वहां पर तो राम जी और कृष्ण की, गोविंद जी का नाम इतना भरा हुआ है। तो देयर इज अ डायरेक्ट मेंशन। अभी बहुत लोग सोचते हैं कि ये अभी अगर सिखिज्म लोग सोचते हैं कि अरे भाई ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी से राम जी और गोविंद जी का नाम हटा देते हैं, कृष्ण का नाम हटा देते हैं। तो एक बहुत सारे लोग
बहुत सारे सिख लोग सोचे, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि हिंदुइज्म से सिखिज्म आए, वी वांट टू हैव सम सेपरेट, हमारा कुछ सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्ट, बट अगर कोई सोचने लगे और कोई अगर व्यक्ति अपने ग्रंथ से, गुरु ग्रंथ साहिब से हटाने जाए राम जी और कृष्ण जी का नाम, तो क्या बचेगा? सिर्फ कवर बचेगा बुक का, और कुछ नहीं बचने वाला। देयर विल बी ओनली रिमेनिंग द कवर ऑफ द बुक, नथिंग एल्स विल रिमेन। क्योंकि पूरे गुरु ग्रंथ साहिब में तो क्लियरली डिस्क्रिप्शन है कि भगवान कृष्ण का नाम कर लेने से तो हम तर सकते हैं, इसीलिए दे चैंट द नेम्स ऑफ कृष्ण, है ना, वाहिगुरु कृष्ण, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और जो श्याम सुंदर का नाम लेता है, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन, जो श्याम सुंदर का नाम लेता है वो कभी भी उसको यमराज कभी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो दिस इज वन थिंग जहां पर हमने एक चीज एक्सप्लेन किया through another thing we discussed, this CEO example we described through logic also। तो हमने logic से भी explain करने की कोशिश की the example of a CEO and Lord and the owner, as well as we are describing even from different religions perspective, भिन्न भिन्न religions के perspective से भी there is only one God only। ऑल्दो उन सब धर्मों में देवताओं के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि उनको बताने की जरूरत भी नहीं थी, दे कैन नॉट हैंडल आल्सो दैट मच नॉलेज। तो इसीलिए इतना तक नॉलेज ही दिया है कि देयर इज ओनली वन गॉड एंड सरेंडर टू हिम। बट इन सनातन धर्म देयर इज अ ऑप्शन गिवन, क्योंकि इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकृति के लोग हैं, कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में, तमोगुण में है। अपनी इच्छा से देयर इज अ ग्रेजुअल एलिवेशन ऑफ अ पर्सन। तो ताकि एक व्यक्ति को एक लाइफ टाइम नहीं लग सकता, मे बी ही मे टेक मेनी लाइफ टाइम्स। इसीलिए इतने सारे देवताओं की पूजा करने के बारे में वहां पर बताया गया है कि वन कैन ग्रेजुअली एलिवेट अकॉर्डिंग टू वंस फेथ। तो इसीलिए this kind of in our religion so many demigods mention is there, but worshipping them is completely yeah. So even another logic if we see from Krishna's names also, कृष्ण के भिन्न भिन्न नामों में से अगर हम देखें, भगवान का एक नाम क्या है? जगन्नाथ, जगत के नाथ। अभी किसी ने बोला कि जगत का नाथ नहीं है, तो सिर्फ इंडिया, जैसे भारत में इनका नाम है कृष्ण का, तो इनको सिर्फ भारत नाथ बोलना चाहिए या हिंदू नाथ। एक्चुअली है ऐसा क्या? ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएशंस बाबा। लॉजिकली ऑल्सो इफ यू सी, कृष्णा's नेम signifies that he is not Udiya Nath, he is not Bengali Nath, he is the Jagannath। तो बेसिकली दीज आर ऑल द थिंग्स। और तो और अगर हम देखें भगवान को, हु इज गॉड, गॉड की परिभाषा क्या है? तो शास्त्रों में इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ गॉड, ये चीज हमने पहले भी बहुत बार कवर की है, बट अगेन इफ वी ट्राई टू रिवाइज अगेन, क्योंकि यहाँ पर हम जब ले ही रहे हैं इतना डिटेल में, व्हाई नॉट टेक इट इन फुल कैटेगरी। तो भगवान का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया हुआ है कि पराशर मुनि डिस्क्राइब्स हु इज गॉड। डेफिनेशन देने वाले कौन है? पराशर मुनि, जो कि वेद व्यास जी के पिता भी है। तो वो डिस्क्राइब करते हैं भगवान का मतलब क्या है। जैसे किसी वान या भग, भग मतलब ऑपुलेंस, भाग्य मतलब, भग मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब जिसके पास वो है, हु इज धारण करने वाला, भगवान। तो धारण करने वाला जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, these 6 ऐश्वर्यस आर देयर, नॉट ऐश्वर्या राय, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब ये 6 ऐश्वर्य। तो पराशर मुनि इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, जिसके पास ब्यूटी है, वेल्थ है, नॉलेज है, फेम है, स्ट्रेंथ है एंड रिनंसिएशन है, ऐसा व्यक्ति ही भगवान कहला सकता है। और तो और जिसके पास ये 6 चीजें क्या है? हमेशा के लिए है और पूर्ण मात्रा में है। दीज 2 थिंग्स फॉर इटर्नैलिटी ही विल बी हैविंग, एंड ही शुड हैव इन कंप्लीटनेस। पूरे के पूरे ये 6 चीजें इन्फिनिट क्वांटिटी में और इन्फिनिट टाइम के लिए, ये 6 चीजें अगर किसी में है, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। तो जैसे हमने पहले भी ये 6 चीजें बताई हैं, जैसे अगर हम देखें, एक जीवात्मा अगर इस संसार में थोड़ा सा भी भगवान की ये 6 क्वालिटीज को एक्सेप्ट कर ले, तो वो बड़ा बहुत महान बन जाता है। जैसे ब्यूटी, भगवान श्री कृष्ण की ब्यूटी के क्या कहने। अभी अगर आप शास्त्रों में देखें, कामदेव परीक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की, तो अभी शिव जी के पास बोले, शिव जी मैं आपसे थोड़ा आपको टेस्ट करना चाहता हूँ। बोले मेरे को क्या टेस्ट करने? जाओ जाओ भगवान के पास जाओ, है ना, व्हाई यू आर कमिंग टू मी। और ऐसे भी लाइक आगे चल के वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद बोले डोंट टेस्ट मी, गो टू कृष्ण, यू कैन टेस्ट हिम। और आगे जाते हैं तो भगवान कृष्ण, ब्रह्मा जी ने उनको एड्रेस दिया, भगवान कहाँ मिलेंगे? तो वो बोलते हैं वंशीवट में जाओ, वहां पर भगवान श्री कृष्ण बहुत सारी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, यू गो देयर। अभी क्यूपिड, कामदेव सोचते हैं अरे भाई बहुत बढ़िया है, मेरे को तो एकदम बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिल गया भगवान को टेस्ट करने का, तो कैसे मैं टेस्ट करूंगा? और तो और इतने सारी गोपियां भी हैं, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट। यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरह से मेरा तीर
बहुत अच्छा काम करेगा। तो वो जाते हैं वंशीवट के पास में और वहां जाकर भगवान कृष्ण के ऊपर एक के ऊपर तीर मारे जा रहे हैं। अब सोचिए भगवान किस प्रकार से महान है। ही इज टेकिंग एवरी, सारे बाण, उसका पूरा तुनीर खाली हो गया, बट स्टिल ही वाज नॉट एबल टू कैप्टिवेट लॉर्ड कृष्णा। पूरा का पूरा बेहोश हो गया, इतना उसने ये किया कि आई एम नॉट एबल टू अट्रैक्ट कृष्णा। हाउ? तो दिस इज व्हाट इज रिलेटेड विद दिस स्टोरी कि कामदेव को भी जो अट्रैक्ट करने वाले हैं, इतने सुंदर है भगवान श्री कृष्ण देखने में कि ही देयर इज अ सेइंग, अरे भाई कोई काला व्यक्ति होता है, जनरली हम लोग जो सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति काला है, श्याम वर्ण का है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, राइट? लेकिन भगवान को अगर हम देखें, इवन काले हैं पर दिल वाले हैं ना, काले भी हैं लेकिन ही इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, शास्त्र से कि इनके घुघराले बाल हैं और उनकी जो श्याम वर्ण की जो कलर है, इट इज नॉट, इस संसार में कभी भी वो कलर किसी के साथ आप तुलना नहीं कर सकते, किसी भी चीज के साथ तुलना नहीं कर सकते। शायद अगर थोड़ा रिजेम्बलेंस अगर हो तो मॉनसून के समय में जो घने काले बाल जो बादल आते हैं, वो थोड़ा बहुत भगवान श्री कृष्ण के काले रंग से मैच कर सकता है, काले रंग से मैच कर सकता है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण के। और तो और ऐसा रंग है उनका, ब्लैक भी है, लेकिन जनरली ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो लाइट एमिट करते हैं, उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है इस संसार में। तो दिस इज व्हाट मदन आल्सो गेट्स अट्रैक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्यूटी के मालिक, अरे इस संसार में थोड़ा सा किसी के पास ब्यूटी हो जाए वो कितना अट्रैक्टिव हो जाता है, लेकिन ये ब्यूटीफुल व्यक्ति भी एक समय क्या हो जाते हैं, उनके भी शरीर से अंगूर बन जाते हैं ना, अंगूर से किशमिश बन जाते हैं। वंस दे आर लाइक सो ब्यूटीफुल, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद वो किशमिश बन जाते हैं, तो उनके सारे रिंकल्स बन जाते हैं, बुढ़ापे में हालत खराब। अच्छा बेटा, मैं एक समय में एक मिस इंडिया होती थी, है ना, पता है बेटा? तो इफ शी इज टेलिंग आई वाज वंस मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स, हु विल केयर? बट कृष्णा, हमने क्या बताया, इस 6 ऐश्वर्य इन्फिनिट क्वांटिटी में भगवान के पास है, इन्फिनिट टाइम के लिए भगवान के पास है। ऐसा नहीं कि कुछ साल के लिए 4 दिन की चांदनी फिर घनेरी रात, है ना, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अगर किसी के पास फेम है, वेल्थ है, अभी सोचिए भगवान तो लक्ष्मीपति है, ही इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, और वो लक्ष्मीपति विष्णु, वो भी भगवान कृष्ण के एक अंशों के अंश है। तो अभी किसी के पास सबसे धनी, अगर कहीं कोई कहा जाए कि सारा धन तो उन्हीं का है इस संसार में, अगर कोई बोले ये बिल गेट्स के पास, बिल गेट्स के पास पैसा कहाँ से आया? अरे देने वाले कौन थे? भगवान कृष्ण ने थोड़ा उसको चलो दे दिया, उसके कर्मा भी है, उसको चलो दे दिया, बट एक्चुअली धन किसके पास है? इसने मैन्युफैक्चर तो नहीं किया था, एक्चुअली धन बनाने वाले भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लक्ष्मी भगवान की क्या है? पत्नी है, और उनके भी पति, पत्नी से तो पति सुप्रीम होते हैं। That's why we can understand Krishna is supreme even in terms of wealth also. सारा धन तो उन्हीं का है इस संसार में। He is the only wealthy person in the entire world. दूसरा, नॉलेज। अभी नॉलेज की बात क्या कहें, कृष्णा इज द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन, उन्होंने ही भगवत गीता दी है, उन्होंने ही भगवत गीता दी है। तो बेसिकली ये 6 चीजें अगर हम देखें, नॉलेज, स्ट्रेंथ और फेम, और तो और रिनंसिएशन, तो ये सारी चीजें भगवान कृष्ण में किस प्रकार से भिन्न विद्यमान है। कृष्णा इज मदन मोहन, पहला हमने ब्यूटी का एग्जांपल लिया। दूसरा, कृष्णा इज द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी पति हैं, रुक्मिणी के पति हैं, और तो और ही इज मोस्ट नॉलेजेबल ऑल्सो। भगवत गीता उन्होंने दिया, उद्धव गीत उन्होंने दिया, ब्रह्मा जी को ज्ञान, गायत्री के द्वारा उन्होंने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ही इज द लाइक ही इज द गिवर ऑफ ऑल दिस नॉलेज। आज भगवत गीता को लेकर आईआईएम्स में, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में भगवत गीता पढ़ाई जाती है मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए, लेकिन ये सारे ज्ञान किसने देने वाले हैं? लॉर्ड कृष्ण। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन स्ट्रेंथ ऑल्सो, भगवान कृष्ण ने के पास ऐसा, देखिए अगर आपको किसी को बोला जाए कि भाई ये फोन आप एक उंगली पे उठा लो, कुछ दिनों पहले हमने गोवर्धन लीला की क्लास दी, तो भाई वो एक उंगली पे तो फोन उठा के दिखा दे बट ऐसा भी नहीं था, भगवान ने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, गोवर्धन पहाड़, और ऐसे नहीं कि ऐसा ऐसा हो रहा है ना, बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है, नो, ही जस्ट लिफ्टेड एज इफ बच्चा कोई मशरूम उठाता है या हाथी एक फूल उठाता है, तो कमल का पुष्प उठाता है, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से उठाया, कंस को मारा, असुरों का संहार किया, कालिया का दमन किया। तो ये सारी चीजें भगवान के अंदर है, ही इज द मोस्ट पावरफुल ऑल्सो। नेक्स्ट, पांचवा इज फेम। लॉर्ड इज सो फेमस, सो फेमस। देखिए हम देखते हैं कि कितने फेमस है भगवान। भगवान का नाम, एक नाम है रणछोड़। अभी 17 बार जरासंध ने अटैक किया, 18वां बार सोचा भगवान ने चलो ठीक है इसको भी आराम से चैन से जीने देते हैं, और 17 बार भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के सारे पार्टीज को, 18वें बार सोचा चलो द्वारका बसानी है, नई जगह आउटिंग करने जाते हैं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर आ गए, लेकिन सोचिए छोड़कर आए रणभूमि, लेकिन आने के बाद क्या बता रहे हैं,
बट उनका नाम पड़ गया रणछोड़। अगर आज अब हम लोग अगर देखने जाएं हमारे साथ अगर हम भी कुछ अगर ऐसा कुछ कार्य करें, तो अगर छोटी मोटी कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जलेबी चोरी करके खाते हैं, माखन चोरी करके भगवान ने खाया, लेकिन आज भी माखन चोरी की लीलाएं भगवान की इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, इतनी फेमस है कि इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, अनूप जलोटा, या फिर सो मेनी सिंगर्स, इतने सारे सिंगर्स हैं, जगजीत सिंह, वो सारे सिंगर्स उनके फेम को लेकर गीत लिख रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और वो भी फेमस हो जा रहे हैं ना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो है ना। तो अगर ये सारी चीजें, क्योंकि भगवान फेमस है, उनके द्वारा हम भी फेमस हो जा रहे हैं। तो ही इज स्टिल नाउ फेमस। 5,000 साल पहले जो एक्टिविटी की, आज भी वो चीज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे रणछोड़ राय जी का अगर एग्जांपल देखेंगे, रणछोड़ राय इतने फेमस है गुजरात में, अहमदाबाद के पास में डाकोर में उनका एक मंदिर है रणछोड़ राय जी का। तो वहां पर अगर कोई पूछे एक दूसरे का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना राधे राधे, वृंदावन में जाएंगे तो क्या होता है राधे राधे, आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो बोलेंगे जय जगन्नाथ, अयोध्या में जाएंगे तो जय श्री राम, जय सियावर रामचंद्र की जय। हर धाम में कुछ ना कुछ, ये द्वारकाधीश जी की जय, द्वारका में जाएंगे। अब अगर डाकोर में जाएंगे तो वहां पर असेंबल कैसे करते हैं एक दूसरे के, कैसे कैसे एड्रेस करते हैं, मंदिर में कौन छे, तो बोलते राजा रणछोड़ राय जी छे, है ना। अगर पूछेगा मंदिर में कौन छे, है ना, तो वो बोलते हैं क्या, राजा रणछोड़ राय छे। ऐसे एड्रेस करते हैं एक दूसरे को, जब भी कोई आपस में मिलते हैं, जैसे राम राम कोई करते हैं, वहां पर ये बात कहते हैं कि मंदिर में कौन छे। ही इज सो फेमस। और तो और फेमस तो है, अरे फेमस भक्तों के बीच में है, अभक्तों के बीच में फेमस है। जैसे ही देयर एथिस्ट पीपल, देयर आर मेनी एथिस्ट पीपल, उनके बीच में भी भगवान श्री कृष्ण फेमस है। कैसे फेमस है, किसी को अगर प्रॉब्लम है ना, नास्तिक को भी प्रॉब्लम क्या होता है, अरे तुम्हारे भगवान, अरे जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप लोगों में से कोई माता रानी की पूजा कर रहा है, देवता किसी देवता की पूजा कर रहा है, सो मेनी पीपल आप पूजा कर रहे हैं, कोई भी कमेंट पास नहीं करेगा, हाँ तू जा गणेश जी के मंदिर जा, हाँ तू इसके मंदिर जा, उसके मंदिर जा। जैसे कृष्ण के मंदिर जाना शुरू कर दोगे, इस्कॉन मंदिर जाना शुरू कर दोगे, हरे कृष्ण जप करना शुरू कर दोगे, हाँ बेटा बहुत मजा आ रहा है, और ले भगवान का नाम, कुछ हो गया भगवान का नाम है, और ले कृष्ण का नाम। ऐसा ही होता है। हाँ। अगर मान लो सर्दी खांसी हो गया, देखा कृष्ण का नाम लेगा तो सर्दी खांसी होगी, है ना। इस तरह से लोग टांग खींचेंगे। अभी इनको तो यही पड़ी हुई है। देखिए नास्तिक लोग भी भगवान श्री कृष्ण से इतना द्वेष रखते हैं, बट उनके लिए भी भगवान फेमस है। भाई देखो तुम्हारे भगवान, हाँ, इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचाते हैं ना, कितनी कितनी सारी गोपियों के साथ भरी रात में इतनी सारी गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अरे तेरे को क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कभी केस फाइल किया नहीं, तेरे को बड़ा दिक्कत हो रहा है। अरे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मुझे एक भी नहीं मिल रही, भगवान इतने सारी लेके घूम रहे हैं, इतनी सारी लेके घूम रहे हैं। बोलते हैं तेरा 100 मतलब सो मेनी करोड़ है ना, 10,000 करोड़ गोपियां, उनके साथ रास भगवान श्री कृष्ण की, we cannot imagine also. So basically there are so many innumerable living entities and he is the रास लीला। तो भगवान श्री कृष्ण एक जीव की भगवान कृष्ण के साथ प्रेम भरी लीलाएं हैं, तो उसको हम इस विजन से देख ही नहीं सकते। बट उनके बीच में भी, नास्तिक लोगों में भी भगवान फेमस है। ओ बोलो, अब कोई बोलेगा अरे भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान है, देखो इतने सारे महाभारत में इतने सारे लोगों को मरवा डाला है, 2 भाइयों में युद्ध छड़वा डाला, ये भगवान तुम्हारे हैं, ये भगवान है। किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, हिटलर ने इतने लोगों को मारा तब प्रॉब्लम नहीं है, नेपोलियन ने मारा इतने लोगों को तब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्हीं से प्रॉब्लम है। अरे तेरे को क्या जा रहा है, भगवान ने धर्म की स्थापना तो की, धर्म की स्थापना तो की। तो ये है, देखिए इवन विद एथिस्ट्स ही इज फेमस। तो भगवान का ख्याति इतनी है, ही इज फेमस अमंग्स डिवोटीज ऑफ कोर्स, बट अमंग्स एथिस्ट आल्सो, नास्तिक लोगों में भी फेमस है। और इसके अलावा जो छठवा ऑपुलेंस है भगवान श्री कृष्ण का, जो 6 चीज किसी को भी भगवान बना सकती है। ऑफ कोर्स भगवान कोई और बन नहीं सकता, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही बन सकते हैं या विष्णु ही बन सकते हैं। तो छठवा जो है रिनंसिएशन, त्याग की भावना, अपने भक्त के लिए पैर धोने के लिए भी रेडी रहते हैं, अपने भक्त के चप्पल, नंद बाबा की चप्पल भी सर पे लेने के लिए रेडी रहते हैं, और नर नारायण ऋषि जैसे तपस्या करने के लिए भी भगवान इस संसार में रेडी है, ताकि हम लोगों का कल्याण हो सके। भारतवर्ष में बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि इसीलिए तपस्या कर रहे हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। इसी कार्य से वो अभी भी बद्रिकाश्रम में ही इस देर, और भक्त के लात खाने के लिए, है ना, बोलते हैं जब इतनी रणभूमि में इतने सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, आवाज सुनाई नहीं देती, तो डायरेक्शन देने का एक ही तरीका है, क्या, राइट में जाना है तो राइट तरफ मारना पड़ता है पैर से, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट तरफ मारना पड़ता है, बीच में रहना है, रुकना है तो बीच में मारना पड़ता है। ये सारी चीज भगवान, अभी सोचिए अगर आपसे बोला जाए कि आज मैं ड्राइव, अगर आप लोगों के पास, कितने लोगों के पास गाड़ी है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव व्हीकल्स, मैं यही एग्जांपल आप लोगों के साथ रिलेट करके देता हूँ। हाउ मेनी यू हैव योर पर्सनल व्हीकल्स, कितने लोगों के पास है? ओके, योगेश्वरी जी, जयंत जी, इशिका जी,
तो यू कैन नाउ रिलेट इट वेरी नाइसली. मुनमुन, थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग. तो बेसिकली जिनके पास भी गाड़ी है, अगर आप बोलेंगे आज तू गाड़ी नहीं चलाएगा, आज मैं गाड़ी चलाऊंगा, है ना, तुम्हारे लिए मैं गाड़ी चलाऊंगा. कैसे? और गाड़ी चलाने के बाद बीच में तुम्हें थप्पड़ लगाना होगा. अगर राइट लेना है तो यू विल गिव मी अ स्लैप हियर, यू विल गिव मी अ स्लैप हियर, है ना. बोले 18 दिन तो क्या, तू 18 सेकंड हम लोग झेल नहीं सकते. थप्पड़ मार रहा है, तू मुझे थप्पड़ मार रहा, तेरे को दूंगा मैं. हाँ, राइट लेफ्ट जाने के लिए अगर इस तरह से हम लोग ये करेंगे. बट लॉर्ड कृष्णा इज सो सुप्रीम फॉर हिज डिवोटी. व्हाट ही इज रेडी टू डू, ही इज रेडी टू बिकम अ चैरियट ड्राइवर. शॉफर बनने के लिए भी रेडी है. ये है भगवान की महिमा. तो these 6 things makes a living entity the supreme lord. of course कोई बन नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर ये कम मात्रा में है. वही चीज भगवान से आई है. भगवान के अंदर इस 6 चीजें पूर्ण मात्रा में है. तो ये भी एक तरह से हम देख सकते हैं कि these 6 opulences also are indicating us that Krishna. तो यहाँ पे गॉड का जो डेफिनेशन हमने दिया अबाउट दिस 6 opulences, तो ये चीजें ये दिस आल्सो प्रूव्स दैट कृष्णा इज गॉड, राइट? बिकॉज वी हैव सीन थ्रू दिस एग्जांपल्स. अभी और तो और अभी अब और भी आगे अगर ये करें, अभी तक हमने कुछ चीजें हमने चर्चा की. अभी थोड़ा अभी आप लोग हमारा जो मेन प्रश्न था, व्हाट वाज आवर मेन डाउट, कि व्हाई वी आर वर्शिपिंग देवतास. इतने सारे देवताओं को हम क्यों पूजा अर्चना करते हैं? व्हाई वी आर वर्शिपिंग देम? another logic before going to our another logic, who all, देखिए कभी कभार ये this is our last logic, the last argument is testimony of great people. कि भगवान श्री कृष्ण इस्कॉन वाले ही नहीं बोल रहे हैं कि ये भगवान है. अरे इससे पहले जितने भी महान लोग रहे हैं उन्होंने भी बताया है कि who is God. तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं. अभी आज हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो जनरली आप जब प्रोडक्ट खरीदते हैं, व्हाट वी सी, किसने ऐड दिया है ना, किसने ऐड दिया. अभी मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, इफ ही गिव्स एन ऐड, हम लोग जरूर पढ़ेगा, अरे दिस मस्ट बी गुड. या फिर अमिताभ बच्चन, अभी भी कौन बड़ा करोड़पति है, या ही इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सो मेनी थिंग्स. स्टिल नाउ ही इज अ एम्बेसडर फॉर मेनी प्रोडक्ट्स. तो he is giving some ad, तो हम लोग सोचते हैं अरे वाह जरूर, if he is recommending then that must be good. या फिर सचिन तेंदुलकर comes and he says boost is the secret of my energy. of course वो बूस्ट से सचिन तेंदुलकर ये नहीं बने, बट of course एक चीज हमारी भावना रहती है कि चलो ये लोग कह रहे हैं तो जरूर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा. उसी तरह से हमारे लिए भी यहाँ पर टेस्टिमनी आती है, और ये लोग फॉल्स टेस्टिमनी नहीं देते. हमारे सिनेमा स्टार्स, सुपरस्टार्स जो लोग होते हैं, क्रिकेट स्टार्स, ये लोग कभी कभार फॉल्स टेस्टिमनी भी देते हैं. चलो पैसा मिल रहे हैं, प्रोडक्ट ये करना है तब हम ये करेंगे. बट यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं अरे भाई मुझे, आई कैन अंडरस्टैंड, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास, ये सारे ऋषि जितने भी ऋषि हैं, दे आर ऑल्सो टेलिंग दैट यू आर सुप्रीम. 10th चैप्टर में 13वां नंबर श्लोक में ये अर्जुन कह रहे हैं. और तो और अगर हम देखें इसके अलावा ग्रेट आचार्य जैसे मध्वाचार्य कौन थे? अपने पिछले जन्म में वो भीम थे, उसके पहले में वो हनुमान रह चुके हैं, पवन पुत्र हनुमान. वो कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्णा, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड. तो दीज आर द ब्रांड एम्बेसडर. इस पे हमें फेथ रखनी, ना कि ये लोग आसपास के लोगों का, है ना. रामानुजाचार्य उनके नाम से ही है, राम अनुज, ये लक्ष्मण के अवतार हैं. और इन्होंने 11वीं शताब्दी में लाइक 2-3 years बैक हिज 1000th अपीयरेंस डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि कुछ सालों पहले. तो रामानुजाचार्य 1000 साल हो गए, ही इज लक्ष्मण हिमसेल्फ, राम अनुज. वो स्वयं प्रूव करने के लिए आए कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है. इवन चैतन्य महाप्रभु, वो स्वयं कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी का भाव लेकर आए हैं इस संसार में, वो भी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण है. तो ये सारे लोग कहते क्या है, ही इज द सुप्रीम. तो दिस इज द टेस्टिमनी. जब हमें किसी व्यक्ति से जब सुनते हैं, ओहो अच्छा ऐसी बात है, यानी कि सिर्फ मनगढ़ंत बात नहीं है. लोग भले ही इस संसार में बहुत कुछ करे, अरे ये देव है, वो देव है, देवादि देव है, लेकिन वी हैव टू टेक द टेस्टिमनी ऑफ these people also. So here we see two testimony in Bhagavad Gita. Arjuna himself quotes Asita, Deval and Vyas. और दूसरे कंटेम्पररी आचार्यों में मध्वाचार्य,
Ramanujacarya, Chaitanya Mahaprabhu, even Shankaracharya also mentioned Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam Mudamate. अरे शंकराचार्य भले ही उन्होंने निराकारवाद का फिलॉसफी दिया, क्यों? क्योंकि उस समय लोग नास्तिक लोग भर गए थे संसार में, तो उन लोगों को बिल्डर करने के लिए आए थे शंकराचार्य, जो कि शिव जी स्वयं है। लेकिन वो भी अंत में जाते वक्त क्या कह रहे हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। या फिर इतने जगन्नाथ अष्टकम, गंगा अष्टकम, गंगा के प्रेयर्स लिखे उन्होंने, कृष्ण अष्टकम, ये सारे प्रेयर्स कौन देखे गए? शंकराचार्य देखे गए। तो शंकराचार्य स्वयं शिव जी है, भक्त हैं भगवान के, तो वो कभी किसी को कैसे चीट कर सकते हैं? तो ये सारे लॉजिक्स हम देखकर बोल सकते हैं कि कृष्णा मस्ट बी द सुप्रीम। तो ये कोई हम इस इंस्टीट्यूशन में रह के ये जस्ट बिकॉज इस्कॉन इज देयर दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग नो, दिस इज नॉट द फिलॉसफी। तो आगे हम एक और, नाउ वी आर कमिंग टू व्हाई देयर आर सो मेनी गॉड्स, वी आर कमिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी चर्चा की कि जैसे एक कैबिनेट, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके अंडर में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो here we go. तो यहां पर अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए अभी आप लोगों का प्रश्न होगा, तो व्हाई पीपल वर्शिप डेमीगॉड्स, देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? इतने सारे देवता हैं, इतने सारे देवताओं की पूजा हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई? अभी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, व्हाट इज दिस? कृष्ण हिमसेल्फ सेज अंतवंतु फलम तेषाम। तो हु आर दोस पीपल जो देवताओं की पूजा करते हैं? 7वें अध्याय में 21, 22, 23 these 3 श्लोकास आर देयर। Here we will be taking this श्लोका। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद्य धाम्यहम। I am seated in everyone's heart, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर देवता को पूजा करने की कोशिश करता है, आराधना करने की कोशिश करता है, तो उस पे फेथ, उसमें श्रद्धा मैं देता हूँ। भगवान हमारे सबके हृदय में परमात्मा रूपी बैठे हुए हैं। He knows everything in and out, हमारी सारी चीजें जानते हैं। लेकिन देने वाले श्रद्धा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। He only gives श्रद्धा to all of us। क्योंकि हमारी श्रद्धा को टिकाए रखने के लिए, अभी इस व्यक्ति की श्रद्धा है किसी, चलो इस देवता पे, तो भगवान वो श्रद्धा देते हैं, ओके यू शुड वर्शिप हिम, तुम्हारी ये फल की इच्छा तुम्हारी इनसे पूर्ति हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? सतया श्रद्धया युक्तस तस्य आराधनम इहते लभते च तथा कामान मन्येव विहितानि तान्। तो ही सेज, ऐसी श्रद्धा जब मैं देता हूं, endowed with such faith, he endeavors to worship such a particular demigod and obtains his desires। वो सारी चीजें मिल भी जाती हैं उसको, क्यों? क्योंकि श्रद्धा देने वाला मैं था और उस देवता को भी मैं ही ऑर्डर कर रहा हूँ, कुछ चाहिए तुम्हारे पास, वो देवता आए हैं। लेकिन देने वाले कौन है? वो देवता भी अल्टीमेटली कौन? कृष्ण के पास जाते हैं। देखिए कोई, हम लोग ये बहुत बार कोट करते हैं ना, तो देवता लोग भी अपने आराधनी, उनके अंडर में जो कोई आते हैं मांगने के लिए, डेमीगॉड्स कम टू कृष्णा कि मेरा भक्त मेरे पास से कुछ मांगने आया है, क्या मैं देख सकता हूं कि नहीं? तो ये सारी चीजें कौन देते हैं? कृष्णा हिमसेल्फ सेज, बट इन एक्चुअलिटी दीस बेनिफिट्स आर बेस्टोर्ड बाय मी अलोन। मैं ही उनको देने वाला हूँ। इस संसार में अगर लेना ही है, तो मैं अगर किसी MP MLA इन सबको मस्का मार के क्यों अगर ये करूं? अगर मेरी दोस्ती अगर प्राइम मिनिस्टर से हो जाती है, सारी इच्छाएं तो उनसे पूरी हो सकती हैं, लेकिन छोटे छोटे चीफ मिनिस्टर, MP MLA, ये सारे लोगों की शरण लेना, दिस इज नॉट कंसिडर्ड वाइज है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड वाइज। इसीलिए 23वें नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये लोग जो हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, ये अविधि पूर्वकम, ये विधि नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट वर्शिप। कान को पकड़ रहे हैं, इस तरह से पकड़ रहे हैं, डायरेक्ट वी शुड अप्रोच डायरेक्टली। अगर हम भगवान, अगर कुछ मांगना है तो अपने पिता से डायरेक्टली मांगो ना, अपने पिता से डायरेक्टली मांगो। तो बेसिकली हमारी इच्छा क्या रहती है? बहुत लोग गाते हैं ना, मेरी मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी, मेरी मुरादे पूरी करते हलवा बांटूंगी, बहुत लोग जाते हैं ना। अब वो कैसे पूछते हैं? मुरादी पूरी कर दे, क्योंकि क्या है, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं इतनी भरी हुई है, इसीलिए देवताओं के पास जाते हैं। और चूंकि उन्होंने इच्छाएं पूरी की हैं, उनको छोड़ के हम किसी और के पास नहीं जा सकते। आज बहुत लोग होंगे अपने घर पे, देयर इज स्टिल लॉट मोर, ये कि कन्विंसिंग, इंटेलिजेंस कन्विंस हो जा रहा है, हार्ट कन्विंस नहीं हो रहा है कि मैंने इतने सालों तक, मेरे लिए ये देवी देवताओं ने मुझे वर्शिप, मैंने इतने सालों तक मैंने पूजा की है, इनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सर देखिए, पहले हम यहाँ पे छोड़ने की बात नहीं कर रहे, पहले हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले फुल नॉलेज जाननी है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, क्योंकि हम कुछ, पहला तो ये देखिए, मुरादे पूरी कर दे फिर हलवा बांटूंगी, पहले कर दे फिर मैं कुछ करूंगा तुम्हारे लिए।
तो दिस इज जस्ट अ बिजनेस रिलेशनशिप। देवताओं के साथ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे, उनको भी पता है ये मेरे पास, ही इज जस्ट माई फैन फॉलोवर, ही इज जस्ट माई, कि इज जस्ट माई, जैसे यूट्यूब में लाइक करते हैं ना, या फेसबुक में लाइक कर देते हैं, हाँ थोड़ा ये हुआ लाइक कर दिया, बस उसको पता है कि मैं अपना जस्ट फैन फॉलोवर बढ़ाने के लिए, ही इज नॉट एक्चुअली लविंग मी, चूंकि ये मैं इसकी इच्छा पूरी कर दे रहा हूँ इसीलिए वो मेरे पास आया, जैसे इच्छा पूरी नहीं होगी वो किसी और के पास जाने वाला है। तो ये तो है भाई, दुकान खोल के रखना है सबने, है ना। इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ही सेज सच काइंड ऑफ पीपल आर ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस, like he is telling अल्पमेधसा, these people are अल्पमेधा। अब जैसे किसी बोलते हैं ना मंद बुद्धि, you are less intelligent, less intelligent का मतलब क्या, you have no intelligence, एक तरह से तुम कम बुद्धि वाले हो। तो बेसिकली अगर इनको पता है कि डायरेक्टली अगर हम भगवान को अप्रोच करेंगे देन देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, देवता लोग, उनकी भी एक पर्टिकुलर आयु रहती है, they themselves also have, they have no permanent post, जैसे देवराज इंद्र। अभी देवराज इंद्र की अगर हम कल्पना करें, एक्चुअली ये करेंगे, देवराज इंद्र कौन बन सकता है, कोई भी जीव अगर 100 कोई अश्वमेध यज्ञ करे, ही कैन बिकम देवराज इंद्र, या इंद्र चंद्र वरुण, ये सारे जो भी हैं देवता लोग, मैक्सिमम लोगों के ऐसे पोस्ट हैं दोस्त कि कुछ तपस्या करने के बाद वो पोस्ट हासिल करते हैं। ब्रह्मा जी का पोस्ट कैसे हासिल कर सकता है कोई, अगर कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म पालन करता है फ्लॉलेसली, देन ही कैन बिकम ब्रह्मा। तो ये सारे देवता लोग, दे आर ऑल्सो हैविंग टेम्पोररी, वो खुद टेम्पोररी हैं, क्योंकि एक मनवंतर तक ये सारे देवताओं का एक पोस्ट रहता है, एक मंत्र 71 चतुर्युग तक दे विल स्टे, अदरवाइज उसके बाद सरकार बदल जाती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार सरकार बदलती है, 14 बार डिफरेंट डिफरेंट देवी देवता आते हैं। ऑफ कोर्स उसमें कुछ हायर देवतास हैं, जैसे लॉर्ड शिवा, सूर्य एंड ये ऑल, दीज आर, ये इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ जो हम लोग बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट संभाल रहे हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट संभालने वाले के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं। এবার অনেকজন আছেন কি বলেন কি যত মত তত পথ, আমার যা ইচ্ছা হবে আমি যেইভাবে ভগবান, যেই কালী সেই কৃষ্ণ। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। बंगाल में तो भर भर के रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग भरी हुई है, जय काली शई कृष्ण। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। काली और कृष्ण, अभी नंदूलाल और चंदूलाल दो डिफरेंट डिफरेंट व्यक्ति है, नंदूलाल चंदूलाल दोनों एक हो सकते हैं क्या? या फिर अगर एग्जांपल देता हूँ, जो तो मत तो पथ, अगर आपको बोला जाए कि यू हैव टू गो टू दिल्ली, लेकिन आप ट्रेन कौन सी पकड़ रहे हैं, आप चंडीगढ़ वाली ट्रेन पकड़ रहे हैं, आप चंडीगढ़ वाली ट्रेन पकड़ के दिल्ली पहुंच सकते हैं, আমরা পৌঁছাতে পারবো, বা আমি বম্বে ট্রেন ধরছি কিন্তু আমি বলবো আমি এই বম্বে ট্রেন ধরে আমি যে কোনো জায়গায় যেতে পারি, नो नेवर, वी कैन नॉट गो। दिल्ली जाने के लिए हमें दिल्ली वाली ट्रेन ही पकड़नी पड़ेगी, इसीलिए भगवान तक जाने के लिए भी पर्टिकुलर पाथ है। जो भी व्यक्ति इस तरह से बहुत सारी धारणाएं हैं, जो तो मत तो पथ, इट इज नॉट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तुमको जो मन में आए उसकी पूजा करो, कंप्लीटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ये इस तरह से हम वी कैन नॉट से। अब प्रॉब्लम ये है कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग हैं दो से कि शास्त्र का तो कोई लॉजिक नहीं था। आज हम लोग इतने सारे श्लोक बता रहे हैं भागवतम से, श्रीमद भगवत गीता से, बट बड़े बड़े लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, या बड़े बड़े साधु बन के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं, अपने मन में जो खिचड़ी आया पका दिया, है ना। तो देयर इज नो रेफरेंस टू शास्त्र, सच काइंड ऑफ लॉजिक इज कंप्लीटली यूजलेस। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रतान भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदयाजिनो अपि माम। भगवान श्री कृष्ण 9 चैप्टर में कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान, अरे जो देवताओं की पूजा करते हैं, যত মত তত পথ নেই, কিভাবে বুঝতে হবে আমাদেরকে कि কেউ যে কেউ পূজা করবে সে কৃষ্ণের কাছে পূজা যাবে, কোনোদিন হবে না সেটা। जानती देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कहाँ जाते हैं, देवताओं के लोक में जाते हैं। those who worship demigods will take birth among the demigods। पितृयान्ति, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के यहाँ, एंसेस्टर्स के यहाँ जाने वाले हैं। दिस इज फ्रॉम 9 चैप्टर, राइट, 25। जो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं, अघोरी बाबा ये वो है ना, वो भूत पिशाचों के पास जाएंगे। एंड दोज हु वर्शिप मी विल कम, विल लिव विद मी। तो ये जो हमने स्लोगन दे के रखा है, जो तो मौत तो पत्तो, ये तो यहीं पे क्रैश हो गया। भगवान भगवत गीता में कर रहे हैं, जो जैसा जिसकी पूजा करेगा वो उसकी धाम में आने वाला है, जो मेरी आराधना करेगा वो मेरे परमानेंट धाम में आने वाला है। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर ये चीज हम सीखते हैं। तो yeah, this is what we can understand कि all these demigods are also taking shelter of Krishna। तो यहाँ पर हमने देखा कि इतना सब हम देवताओं को समझ के रखे हैं, they are also worshipping Lord Krishna। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, शिव जी के पास एक भक्त आए। शिव जी हमेशा राम जी का नाम लेते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा शिव जी, अगर आप एग्जैक्टली अगर देखेंगे लॉर्ड शिवा, whenever he comes
इन कृष्णा, कृष्ण की जब भी लीला होती है, कृष्ण की लीला में वो हमेशा राम जी की लीला में वो क्या बन के आए? आप लोगों को सबको पता है। हाउ ही केम? राम जी की लीला में लॉर्ड शिवा एज हनुमान, राइट? उनके 11वें अंश, राइट? यस। पूजा कैलाश, यस, मंकी एज हनुमान, राइट? कैलाश इज राइट। और दूसरा, जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो मुरारी गुप्त बन के आए, और हमेशा राम जी का नाम लेते रहते थे। तो ये शिव जी जो है, शिव जी राम जी के इतने बड़े भक्त हैं। हमेशा उनके हाथ में देखिएगा एक ना एक माला रहती है। ही इज ऑलवेज चैंटिंग। हाथ में देखिए एक माला लेके फिरते रहते। किसका नाम लेते हैं? अगर शिव, दे आर ऑल्सो सुप्रीम, ऑफ कोर्स। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं कि दीज डेमिगॉड्स, सबके अंदर कुछ गुण है। जैसे आपने एग्जांपल दिया था, एक जीव के अंदर मैक्सिमम गुण कितने हो सकते हैं? 50 गुण। 50 गुण। उसमें भी मैक्सिमम गुण किनके पास है? लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के पास 50 गुण है। एंड लॉर्ड शिवा is in between Lord Shiva is in between Jiva Tattva and Shambhu Tattva, and Jiva Tattva and Vishnu Tattva. Vishnu जी के पास कितने हैं? 60 गुना, 60 qualities. Lord Shiva has 55 and Krishna has 4 more, right? तो ये आज आएगा, ये सारी चीजें स्लाइड्स में आने वाली है। तो these are the qualities of Lord Krishna। ये हमेशा देखिए, शिव जी भगवान विष्णु की हमेशा आराधना करते रहते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Lord Shiva is always meditating on the names of Lord Vishnu, Lord Krishna, Lord Ram. उनके जो वर्शिपेबल गॉड हैं, ही संकर्षण। संकर्षण जो है चतुर्व्यूह के संकर्षण, या श्री राम जी हमेशा काशी में कोई भी अगर देह छोड़ता है, वो उसके कान में आके क्या करते हैं? राम जी का नाम लेते हैं, ताकि उसकी मुक्ति हो सके। तो ये सब हम जानते हैं। तो ही इज ऑल्सो अ वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो बेसिकली भगवान देवताओं के पास हम किस लिए जाते हैं? क्योंकि हमारी तीव्र इच्छाएं रहती हैं। लेकिन तीव्र इच्छाओं का प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज अ प्रॉब्लम? देवताओं के पास जब भी हम जाते हैं, क्योंकि देवता टेम्पररी हैं, हमारी इच्छाएं अगर पूरी भी हो जाएं तो वो टेम्पररी होंगी। मैक्सिमम शायद 5 साल 10 साल तक ही वो इच्छा पूरी हो सकती है, या फिर मैक्सिमम इस लाइफ टाइम तक। लेकिन इस लाइफ टाइम के बाद में नहीं होने वाला। दूसरा, हमारे हृदय की जो कामनाएं, वासनाएं हैं, वो कभी भी इन देवताओं की पूजा करने से कभी भी क्या होती है? इट नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड, नेवर गेट्स डिस्ट्रॉयड। वो कभी भी इच्छाएं कंप्लीट कभी भी संतुष्ट होती नहीं है। इसीलिए देवताओं की पूजा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिस इज अविधि पूर्वकम। अगर कुछ मांगना है, अपने बाप से मांगो, अपने पिताजी से मांगो। ही इज आवर सुप्रीम लॉर्ड। लॉर्ड विल नेवर डिनाई अस। हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो दैट इज नॉट रॉन्ग। ध्रुव महाराज ने भगवान विष्णु की पूजा की, और उन्हें क्या मिला? ही गॉट द सुप्रीम अबोर्ड, ध्रुव तारा। वहां पर उन्हें ऐसा पूरा एक छत्र साम्राज्य मिला। He ruled in this world for 36,000 years, 36,000 साल तक शासन किया, और साथ साथ अभी भी उन सशरीर वो भगवान के धाम गए। पिछले सेशन में हमने ये बताया था। तो बेसिकली ये चीजें हमने ये देखी। तो बेसिकली ये टू कंक्लूड, यहाँ पर हम अगर देखेंगे, कृष्णाज वर्शिप, विष्णु वर्शिप इज फॉर गुडनेस। सत्व गुण में जो लोग हैं, उनके लिए वर्शिप है। इट इज नॉट फॉर इग्नोरेंट, दोज पीपल हु आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो बिकॉज वी कैन नॉट ऑफर हिम 5 M's, मध्य, मात्स्य, मैथुन, मूरा, ये सारी चीजें हम भगवान को ऑफर नहीं कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना? तुलसी, फूल, पुष्प और वाटर, सत्वगुणी चीजें हम भगवान को ऑफर करते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट फॉर पैशनेट, ओनली फॉर पीपल हु आर इन गुडनेस। भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर एक कहानी आती है एक ऋषि की, कि किस प्रकार से एक ऋषि भगवान की खोज में निकले। भगवान की खोज में निकले कि कौन भगवान है, कौन भगवान है। तो दिस इज द लास्ट थिंग which we will be taking care of a story of Bhrigu Muni, how he went in search of God. भगवान कौन है, वो स्वयं जाते हैं सर्च करने के लिए। तो इस स्टोरी में के द्वारा हमें समझ में आएगा। yes. तो एक बार की बात है, बहुत सारे राजा देवता लोग मिलके एक सत्र, बहुत सारे ऋषि मुनि मिलकर एक सत्र नाम का एक यज्ञ कर रहे थे। तो इस यज्ञ में ये डिसाइड हुआ कि अरे भाई, उनके बीच में भी कंफ्यूजन था। ये सारे ऋषियों के बीच में कंफ्यूजन था। कोई बोल रहे थे कि शिव जी सुप्रीम है, कोई कह रहे थे ब्रह्मा जी सुप्रीम है, ब्रह्मा जी ने इस संसार की सृष्टि की है। कोई कह रहे हैं कि कौन सुप्रीम है, विष्णु सुप्रीम है या कृष्ण सुप्रीम है। तो बेसिकली इस स्टोरी में भी हम देख सकते हैं कि इनके बीच में ये जो डाउट है, तो वहां पर उन्होंने सिलेक्ट किया कि हमारे बीच में जो भृगु मुनि है, उनको हम सिलेक्ट करते हैं, ये जाके सबको टेस्ट करके आएंगे। ही शुड गो एंड टेस्ट एवरीवन। तो ही गोज देयर इन, पहली बार वो जाते हैं कहां पर? सत्यलोक में।
सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को किस प्रकार से टेस्ट करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए ब्रह्मा जी के स्वयं के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं भृगु मुनि। तो वो जब वहां गए तो उन्होंने सोचा कि मैं कैसे टेस्ट करूं पिताजी को। तो वो वहां पर जाने के बाद देखते हैं ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं सभा में। तो उन्होंने अपने पिताजी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, जय गए डायरेक्ट आके मिलने शुरू हो गए। ऑफ कोर्स हमारे लिए कलयुग में जाकर ये काफी कॉमन है, पिताजी मम्मी के पास घर पे हम जाते हैं ना, तो पैर छूते हैं ना मत्था टेकते हैं ना पैरी पौना मम्मी ये सब कुछ नहीं करते, एटलीस्ट बोलते भी नहीं है मामा पैरी पौना है ना, वो भी नहीं करते। तो वो भी यहाँ पर गए, डायरेक्ट आके ब्रह्मा जी के पास मिलने गए और बिना प्रणाम वणाम किए बोलने लगे कैसे हैं पिताजी। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा खराब लगा, ही फेल्ट रियली बैड, बट ही डिडंट माइंड इट। उनको मन से खराब लगा बिकॉज, बट चूंकि वो उनके पुत्र हैं उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन भृगु मुनि को यह समझ में आ गया कि मेरे पिताजी को, ब्रह्मा जी को थोड़ा तो ऑफेंस, उन्हें लगा कि ही ऑल्सो फेल्ट बैड। दैट मीन्स उनकी जो टॉलरेंस की क्षमता है, भले ही मैंने उनका अपमान किया, वो उतना अपमान भी सहन नहीं कर पाए, थोड़ा उनका टॉलरेंस लिमिट भी थोड़ा कम है। फिर आगे चल के वो जाते हैं अपने भाई के पास, भृगु मुनि जाते हैं भाई, उनके भाई हैं लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड शिवा के पास वो जाते हैं, शिव के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डायरेक्ट आने के बाद शिव जी के पास गए और शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, अरे मेरा भाई आया है मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के वो भी मानस पुत्र हैं और शिव जी भी, he took birth from the eyebrow of Lord Brahma। तो दोनों इतने लाइक दिस इंसिडेंट took such a turn। तो शिव जी इतने प्रसन्न हो गए, अरे मैं तुम्हारा आलिंगन करूंगा, यू आर माय ब्रदर, मैं आपको आलिंगन करने जाऊंगा, आई वुड एम्ब्रेस यू। लेकिन ऐसे एम्ब्रेस करने जा ही रहे थे, भृगु मुनि बोला अरे नहीं 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 नहीं, मैं तुमसे आई विल नॉट एम्ब्रेस यू। व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे कभी देखा है अपने आईने में चेहरा देखा है? क्या करते हो? अरे पूरे शरीर पे राख वाख बन के रखी है, कहाँ कहाँ का कौन से शमशान से क्या क्या राख लगा के रखी है, कौन तुमको छुआ? यू आर अपवित्र। अरे तुम्हारा नाम शिव है लेकिन तुम काम के शिव नहीं हो, यू आर इनऑस्पिशियस। इस तरह से शिव जी का अपमान किया उन्होंने। तो शिव जी भी क्रोधित हो गए, बोले कि तुम भाई होकर तुम ऐसा अपमान कर रहे हो, भाई होकर तुम ऐसा अपमान कर रहे हो। वो त्रिशूल लेके उसके पीछे भागे। ऑफ कोर्स ये सारी कहानियां हैं, क्योंकि देखिए इन सारी कहानियों के पीछे भी ये चीजें हैं कि ब्रह्मा जी को भी पता था कि ही इज कमिंग टू टेस्ट मी। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे रिएक्ट किया कि दे शुड अंडरस्टैंड, भृगु मुनि शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट द सुप्रीम। यहाँ पर भले ही शिव जी क्रोधित हो रहे हैं और वो त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागने के लिए दौड़ते हैं, उस समय पार्वती देवी उनको रोकने के लिए आती है। लॉर्ड शिवा प्लीज कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर एंगर, डोंट, ही इज योर ब्रदर, उनको मत मारने जाइए आप। तो ये लीला भी शिव जी ने इस प्रकार से इसीलिए की क्योंकि ये भी कंट्रोलर है। शिव वो भी तो एक ईश्वर है, उनके अंदर भी 55 क्वालिटीज हैं, भगवान विष्णु के कुछ गुण उनके अंदर भी हैं। तो उनको भी समझ में आता है ये टेस्ट करना है, लेकिन ही ऑल्सो वांटेड टू प्रूव दैट लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम। इस कारण से उन्होंने भी दिखाया कि आई ऑल्सो गॉट ऑफेंडेड। लेकिन आगे चल के वो जहां जाते हैं विष्णु के पास, देखिए पहला जो ऑफेंस था ब्रह्मा जी के पास वो था मानसिक अपराध, मन से अपराध किया, इसीलिए मन से थोड़ा बहुत अपराध करना वो दैट इज नॉट कंसिडर्ड सुप्रीम। दूसरा अपराध जो कैलाश में जाके भृगु मुनि करते हैं वो उन्होंने वाणी के द्वारा किया। मन के द्वारा अपराध करना कि चलो पिताजी को प्रणाम ना करना, ये कम लेवल का अपराध है। दूसरा वाणी के द्वारा हार्श वचन बोलना किसी को, ये हायर डिग्री का अपराध है। लेकिन इसके बाद जो वैकुंठ में जाके भृगु मुनि करते हैं विष्णु के साथ, ये तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। इन्होंने क्या किया, भृगु मुनि जाके विष्णु लोक में जाते हैं, वैकुंठ लोक में जाने के बाद आए देखा ना ताएं, है ना, दाएं बाएं कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट जाके विष्णु के छाती पे जाके थाड़ से लात मार दी उन्होंने, हाथ से पैर से उन्होंने लाइक ही गेव अ प्रहार। और विष्णु जी लेटे हुए थे और लेटने के बाद सोचिए व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस लॉर्ड विष्णु गिव्स। ही स्टार्ट्स टेलिंग, हे ब्राह्मण देवता, अरे आपके पैरों में तो पूरा दिस होल ऑल लाइक पूरे शास्त्र आपके शरीर में विद्यमान है। यू आर द मोस्ट मर्सीफुल पर्सन। ब्राह्मण तो मैं भी ब्राह्मणों को पूछता हूँ, यू आर सो मर्सीफुल पर्सन, और आपने मेरे शरीर मेरे वक्ष स्थल पे जो कि किस प्रकार से है, दिस इज एज हार्ड एज थंडरबोल्ट, है ना, मेरा वक्ष स्थल पत्थर के समान है, लेकिन आपका पैर तो एकदम कोमल है। आपको मुझे लगता है शायद आपके पैर में क्या हुआ होगा, देर मुंड भी चोट आई होगी, क्योंकि आपके पैर में मेरे हार्ड इतने वज्र के समान छाती पे आपने जो पैर दिया है, पक्षाघात किया है, शायद आपके पैर में कोई चोट ना आ जाए। मैं आपके पैरों का क्या करता हूँ, मैं आपका मसाज करता हूँ। आई वुड पर्सनली मसाज योर लोटस फीट। मुझे क्षमा करें, मैं आपका अच्छी प्रकार से वेलकम नहीं कर पाया।
या भृगु मुनि ये देखते हैं, बोले ये तो कम्प्लीटली, दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, मैंने तो इस प्रकार से उनका अपमान किया और ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही मुझे कह रहा है कि मैंने आपका ठीक प्रकार से वेलकम नहीं किया, आप ब्राह्मणों के देवता हैं, आप ये हैं वो है, इतने सारे इस प्रकार से उन्होंने वर्ड्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन कहे। वो समझ गए कि जिसकी टॉलरेंस की क्षमता सबसे ज्यादा है, ही मस्ट बी द सुप्रीम। यहाँ पर उन्होंने फिजिकल अब्यूज किया, दिस वाज अ फिजिकल अपराध, फिजिकल ऑफेंस, और इसको झेलना हम जैसे कोई व्यक्ति कभी भी झेल नहीं सकते, लेकिन विष्णु इतने महान है, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया अपने 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 वक्ष स्थल पर। और आज भी अगर हम देखेंगे जगन्नाथ जी के राइट साइड पे या विष्णु जी के कहीं पर भी मूर्ति होती है, तो वहां पे भृगु इस कहानी को वो अपने शरीर में टैटू की तरह यूज करते हैं ना। वी कैन सी, कभी अगर कभी जिनके घर पे जगन्नाथ जी के डिटीज है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव जगन्नाथ डिटीज? अगर आपके घर पर जगन्नाथ के डिटीज होंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर भगवान जी एक छोटे से पैर का भृगु के पैरों का अंकन किया रहता है। दिस इज अ स्मॉल lotus feet just to remind him that Bhrigu Muni like मैंने these brahmanas are worshipable for me, उनको उन्होंने परमानेंटली अपने शरीर पे ये मार्क रखा है। तो दिस इज लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड विष्णु's ग्रेटनेस। तो ये फिर आके फिर ब्राह्मणों के पास आते हैं और फिर वो कहानी बताते हैं हु इज द सुप्रीम, हु इज द सुप्रीम, ये सारी कहानियां बताते हैं ये। तो ये तीन चीजें, शिव जी, ब्रह्मा जी और ये सारी चीजें, वर्शिप इन द मूड ऑफ गुडनेस, हु, लॉर्ड ब्रह्मा। तो इवन लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिव, शिव क्या बताते हैं इन पद्म पुराण कि आराधनम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। तो ही हिमसेल्फ से कि सब प्रकार के वर्शिपों में कौन परम है? भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे सबसे परम है। ही इज द सुप्रीम मोस्ट, राइट। तो ये बताते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। भगवान की कैबिनेट मिनिस्ट्री में क्रिएशन करने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। डिस्ट्रक्शन करने वाले शिव। इलेक्ट्रिसिटी देने वाले सूर्य। एग्रीकल्चर मून, क्योंकि उनके रस से ही सब उनके उनकी उनकी ज्योति से ही सारे फलों में सब प्रकार के वनस्पतियों में रस आता है। रेन के देवता कौन है? इंद्र। फाइनेंस कुबेर। जस्टिस यम। एयर वायु और वाटर के वरुण। लेकिन भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भाई मुझे अप्रोच करो, इन छोटे छोटे कैबिनेट मिनिस्टर्स को अप्रोच मत करो, यू शुड वर्शिप मी। तो दिस इज कृष्णा's स्टेटमेंट। ये सारी चीजें जो भी संसार में है, ये सब मेरे एक स्फुल्लिंग मात्रा है। दिस इज जस्ट माई जस्ट माई स्पार्क ऑफ एंडेवर, राइट, स्पार्क। तो बेसिकली ये सारे चीजें हैं। तो ये हमने ये सारी चीजें अभी तक डिस्क्राइब की। तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड दिस मैनी सेक्शंस। तो अभी एक और जो चीज आती है कि हाउ, ये तो हमने एक और चीज अभी तक इस प्रकार से बताई। आई विल टेक 7-8 more minutes to compile one other thing. एक और चीज मैं अभी बिफोर आप लोग ऑफलाइन होने के पहले एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नेक्स्ट संडे देयर विल बी अ स्पेशल सेशन ऑन द ग्लोरीज ऑफ होली नेम। तो जो इसके बाद वाला जो संडे है 6:30 बजे क्लास होगा, लेकिन हमारे बीच में एक स्पेशल स्पीकर भी आने वाले हैं, हिज ग्रेस अनंत गौर सुंदर प्रभु। ही इज फ्रॉम इस्कॉन न्यू टाउन कोलकाता। हमारे कोलकाता में एक और सेंटर भी है न्यू टाउन टेम्पल में, राजारहाट में। तो he is from IIT Kharagpur. तो he will be coming and he will be taking a special session on chanting of Hare Krishna. तो हम सब जब कर रहे हैं, हरिनाम का जप तो कर रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो फेस करते ही हैं। तो he will definitely enlighten us. तो मेरा रिक्वेस्ट है उस दिन टाइम पे आ जाइएगा। आप लोग अभी टाइम पे आते, मैं इसलिए थोड़ा देर से सेशन शुरू करता हूँ कि आएंगे, लेकिन आजकल लोग धीरे धीरे आराम से टाइम पे आते हैं। प्लीज ट्राई टू कम in time so that speaker also gets motivated to come in time. So especially next session, please be on time. This is my humble request आप लोगों से। तो अभी जो मेरा एक प्रश्न था, ऑफ कोर्स मैं आज लॉर्ड शिवा का पोजीशन लेने वाला नहीं हूँ, बिकॉज ऑलरेडी टाइम इज ओवर। लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड गॉडेस दुर्गा वी विल बी टेकिंग ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। अगला वेडनेसडे में हाउ गॉडेस दुर्गा एंड लॉर्ड शिवा, दे आर ऑल्सो द टॉप मोस्ट डिवोटी, सबसे परम भक्त हैं, ये हम आगे लेंगे। लेकिन आज हम जो सेक्शन लेने वाले हैं कि किस प्रकार से क्रिएशन होता है। तो क्रिएशन बहुत सूक्ष्म, लाइक वेरी 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 इन शॉर्ट आई विल बी टेकिंग, किस प्रकार से ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि अरे भाई आपने अभी तक तो ये जो सारी चीजें बताई, कृष्ण एते चाम स कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान से हम इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। कृष्ण किस प्रकार से क्या है, अवतारी हैं, और बाकी सारे देवता, बाकी सारे जितने भी विष्णु तत्व हैं, सब भगवान से आए हैं।
they all have come from Lord Krishna. He is the supreme aham bija pradah pita. So this section comes from Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 20 number chapter. ये रेफरेंस है, वहां से हम ये जो अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 20वें नंबर चैप्टर में आती है। तो वहां पर ये डिस्क्रिप्शन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के दाएं अंग से बलराम जी पहला एक्सपेंशन आते हैं। तो एक प्रकार से बलराम जी ही सारे अवतारियों के के स्रोत हैं, क्योंकि कृष्ण तो बांसुरी लेके खेलने में बिजी है, वो कुछ और काम नहीं करते हैं, लेकिन बलराम जी बाकी सारे अवतारों के स्रोत बनते हैं। He is the source of all incarnations, everything, entire universe, entire material world, entire spiritual world. बलराम जी इस आदि गुरु, और वो किस प्रकार से ये करते हैं, बलराम जी एक्सपैंड करते हैं। ये पहला जो एक्सपेंशन आया, दाईं ओर से बलराम जी, बाएं ओर से श्रीमती राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण के दो, एक्चुअली देखिए कुछ लोग कहते हैं कि इफ गॉड इज वन, तो इज गॉड मेल और फीमेल? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई भगवान मेल है फीमेल है। ही इज बोथ, मेल और फीमेल, ही इज बोथ। कोई अगर मेल रूप में भगवान की पूजा करना चाहते हैं, ही इज कृष्ण, और अगर फीमेल रूप में पूजा करना चाहते हैं, ही कम्स हिमसेल्फ एज श्रीमती राधा रानी। तो स्पेशली अगर हम देखने जाएंगे, ही इज बोथ इन द सेंस, है ना। तो स्पिरिचुअल स्पीकिंग, ही इज हिमसेल्फ मेल एंड फीमेल बोथ। ही इज एनर्जी, ही इज एनर्जेटिक, वो शक्तिमान भी है, वो शक्तिशाली भी है, उनकी शक्ति भी है। तो शक्ति कौन है उनकी? आदि शक्ति। बहुत लोग कहते हैं आद्या शक्ति देवी काली है, लेकिन आदि शक्ति के उनके ऊपर भी स्रोत कौन है? जैसे ये चार्ट आ रहा है, बलराम जी से पूरे विष्णु तत्व और सारे देवता आ रहे हैं। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी, शी इज द ऑरिजिन ऑफ ऑल द गोपीज इन द एंटायर यूनिवर्स। और तो और पूरी की पूरी लक्ष्मी, जितनी भी लक्ष्मियां हैं ब्रह्मांड में, वो भी राधा रानी से आती हैं। और तो और सावित्री या सरस्वती देवी, देवी पार्वती and Lakshmi Devi, they all are coming from Srimati Radharani. She is the Adi Shakti. Adya Shakti is not Kali Devi, है ना। उनके लिए भी आराधिता देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और अगर आप भी आज अभी अगर जाएंगे वृंदावन में, जाएंगे कामा में, जाइए काम्य वन में, दिस आराधिता देवी, योग माया देवी is worshipped as वृंदा देवी। वृंदा देवी is the योग माया potency, and योग माया कौन है? दुर्गा देवी। She is Krishna's सिस्टर सुभद्रा महारानी। तो इतने सारे तत्व हैं, इसके बारे में हम एक सेशन अलग से लेने वाले हैं, शिवा एंड योग माया के लिए। बट आगे यहाँ पर अगर हम देखें किस प्रकार से क्रिएशन हुआ, तो कृष्ण के दाहिने अंग से आते हैं बलराम जी, और बलराम जी से 4 अंश निकलते हैं। तो अभी इस लेवल पर इफ यू सी, बलराम जी इस मैनिफेस्टेशन पे वो एक्सपैंड करते हैं। किस प्रकार से एक्सपैंड करते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पूरा जो गोलोक वृंदावन है, गोलोक धाम है। One second, I will show you the chart also parallelly. हमने आपके सामने ग्रुप में चार्ट शेयर किया था, राइट? हाउ मेनी हैव सीन दैट चार्ट? कितने लोगों ने वो चार्ट देखा है? किसी का कुछ प्रश्न है उसमें से? अगर कुछ प्रश्न है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी हैव सीन दैट चार्ट? ओके, ओके, सुलक्षणा जी, मुनमुन जी, सौमी, थैंक यू सो मच फॉर एटलीस्ट गोइंग थ्रू दैट चार्ट। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो दिस चार्ट इज टेलिंग अबाउट गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन, ये गोलोक धाम जो है, ये भगवान का, ये एक्सपैंड कौन करता है? बलराम जी स्वयं एक्सपैंड करते हैं। He himself manifests as the first animal, क्योंकि भगवान की पादुका, भगवान के वस्त्र, भगवान के अनंत शेष की जो शैया है, अनंत शेष पे देखते हैं ना, अनंत शेष कौन है? बलराम जी के एक्सपेंशन है। और भगवान के हर चीज में एक्सपैंड करने वाले होते हैं बलराम। तो भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, भगवान के कार्य को हेल्प करने के लिए लॉर्ड कृष्णा का ही एक एक्सपेंशन है बलराम जी, वो सारे कार्य करते हैं। तो ये जो धाम के रूप में एक्सपैंड किया उन्होंने, उसके बाद वो आगे एक्सपैंड करते हैं 4 विष्णु तत्वों के रूप में। in which Vishnu Tattvas he expands as संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एंड वसुदेव। तो ये संकर्षण, ये इसको कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। 4 चतुर्व्यूह में भगवान के ये 4 हाथों में 4 अलग अलग भिन्न भिन्न शंख चक्र गदा पद्म रहते हैं। एक्चुअली वो बहुत बार बोलते हैं कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये भी इन्हीं के मैनिफेस्टेशंस है, इन्हीं से ही वो अवतारित हुए हैं, राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वसुदेव के। और इस संकर्षण से पहले वाले जो संकर्षण थे, उनसे एक एक्सपेंशन आते हैं जिनका नाम है नारायण।
जिनका एक्सपेंशन आता है नारायण। अभी आप लोग को लगेगा नारायण और विष्णु के क्या क्या अंतर है। जब भी शास्त्र में नारायण और विष्णु को बताया जाता है, जनरली आपको देखने में दोनों एक ही हैं। दे हैव ऑल 4 हैंडेड, शंख चक्र गदा पद्म दोनों में एक है। ओनली कृष्णा हैज 2 हैंड्स, दे हैव 2 मोर एक्स्ट्रा हैंड्स। लेकिन नारायण और कृष्ण कहाँ पे है? नारायण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के 4 भुजा वाले रूप हैं, और विष्णु इस भौतिक जगत में वही 4 भुजा वाले को विष्णु रूप कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये नारायण आगे चल के और फिर सेकंड चतुर्व्यूह में एक्सपैंड करते हैं। विच आर दिस चतुर्व्यूह? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव। जो सेकंड चतुर्व्यूह होते हैं, इन संकर्षण को महासंकर्षण कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार से इनका कार्य क्या है, यहाँ से इन नारायण रूप से बेसिकली अगर हम देखें इन दैट गोलोका चार्ट, पहला वाला चार्ट में हमने देखा भगवान के एक्चुअल धाम में 4 धाम है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे गोलोक वृंदावन इज द सेंट्रल पार्ट, बट इसके अलावा भी गोलोक मथुरा, गोलोक जगन्नाथपुरी एंड गोलोक द्वारका, ये सारे धाम भी कहाँ पर हैं? एक्चुअली ये धाम वहां पर हैं। उस धाम से भगवान का धाम इस जगह पे भी अवतरित होता है। जैसे भगवान अवतरित होते हैं, भगवान का धाम भी अवतरित होता है। बीच में एक धाम आता है अयोध्या धाम, साकेत धाम। ये गोलोक धाम और वैकुंठ धाम के बीच में। तो अगर ये चार्ट अगर हम देखें, दिस इज फ्रॉम ब्रह्म संहिता, ये चार्ट को डिस्क्राइब किया गया है। इस मटेरियल वर्ल्ड को बोला गया है दैवी धाम। क्यों दैवी धाम एक्सप्लेन किया गया है? क्योंकि यहाँ पर देवी दुर्गा का कंट्रोल है। दुर्गा देवी इसकी दुर्ग है, दुर्ग से दुर्गा आया है। दुर्गा इज कंट्रोलिंग दिस मटेरियल वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दिस नेम इज कॉल्ड देवी, दैवी धाम। तो यहाँ की अधिष्ठात्री या यहाँ की कंट्रोलर है दुर्गा। और तो और थोड़ा अगर ऊपर जाएंगे, भगवान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में एक धाम आता है महेश धाम। उस महेश धाम का नाम क्यों आया है? क्योंकि लॉर्ड शिवा इज कंट्रोलिंग हियर, लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ शंभु। तो इस धाम को सदाशिव लोक या महाकाल धाम भी कहा गया है। तो इसमें एक्चुअली शिव जी के भी जो मूल स्तोत्र हैं, जो कि सदाशिव हैं, ही इज एज गुड एज लॉर्ड विष्णु। विष्णु के समान क्वालिटीज है यहाँ पे। इसमें 60 क्वालिटीज, मतलब हम शिव जी की बात नहीं कर रहे, शिव जी के भी स्रोत कौन है? सदाशिव। तो वो क्या करते हैं, उनका कार्य क्या है? इस मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाउंड्री के बीच में ही इज कंट्रोलिंग, इन द सेंस कि कोई भी अनअलाउड एंट्री, ही इज द धाम रक्षक। ब्रह्म ज्योति में या भगवान के धाम में एंट्री किसी को ना मिल जाए, कोई भी अनअलाउड एंट्री, कोई असुर ना घुसे, इसीलिए कंट्रोल करने कौन करते हैं? शंभु, शिव जी, इन हिज लोका कॉल्ड सदाशिव लोक। और आगे चल के जो धाम आता है जिसका नाम है हरि धाम। हरि धाम मतलब वैकुंठ। ठीक है, देवी धामनी महेश, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। यहाँ पर इस हरि धाम में 2 कैटेगरीज हैं, वैकुंठ, अयोध्या धाम एंड गोलोक धाम। गोलोक धाम में गोलोक वृंदावन इज इन द सेंटर, जहां पे भगवान श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ चिंतामणि वृक्ष के नीचे सो मेनी पास टाइम्स ही इज डूइंग। यहाँ पर ललिता, विशाखा, सुचित्रा, ये सारी गोपियां हैं। उनके साथ साथ उनके ग्वाल बाल सखा जितने भी सब ये हैं। और इनके देखिए, पहला जो हमने संकर्षण, पहला जो 4 एक्सपेंशन के बारे में देखा, तो ये देखिए प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण। जो पहले जो 4 एक्सपेंशन थे, उनका कार्य क्या है? गोलोक धाम के 4 तरफ से बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना, ताकि ये धाम रक्षक की तरह रोल करते हैं। पहले जो 4 एक्सपेंशन है, उनमें से जो पहला जो एक्सपेंशन है, पहले जो एक्सपेंशन थे संकर्षण, ये संकर्षण आगे चलकर लाइक ही एक्सपैंड्स एज नारायण। और वो नारायण आगे चल के कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, वो नीचे अगर जाएंगे हम, ही एक्सपैंड्स इन सो मेनी इननंबरेबल फॉर्म्स। हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते वैकुंठ धाम में कितने भगवान के अंश हैं। कोई देखिए पद्मनाभ नाम से है, कोई अनिरुद्ध नाम से, कोई ऋषिकेश, कोई हरि, कोई जनार्दन, कोई त्रिविक्रम, वामन, अनिरुद्ध। तो भगवान इस प्रकार से अनंत कोटि वैकुंठ धाम है, और सबका डायमेंशन वी डोंट नो वैकुंठ धाम से डायमेंशन आल्सो। तो ये कौन से, तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस एक्सपेंशन कम्स इन द सेकंड एक्सपेंशन जो है, ये सारे एक्सपेंशन से ये वैकुंठ धाम में ये 4 इतने सारे रूप आते हैं। तो ये तो अभी तक हमने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में कल्पना बताई। अभी आपको ऑफ कोर्स ये चीज लगेगा, अरे भाई ये कहाँ सारे प्रभु जी कहाँ बता रहे जा रहे हैं। देखिए, इफ वी स्पीक हाउ क्रिएशन हैपेंड, ना तो बिग बैंग थ्योरी अभी तक प्रूव की जा चुकी है, ना तो स्ट्रिंग थ्योरी या कोई भी अदर थ्योरी, देयर इज नो कॉन्सेप्ट दैट दीज आर बीइंग प्रूवन। बट राइदर हमको जहां पर डायरेक्टली कहीं पर लिखा हुआ स्रोत है, उसमें हमें विश्वास करने में दिक्कत हो रही है। तो दिस इज आवर मिसफॉर्चून, बिकॉज जितनी हमारी श्रद्धा होगी इन सब चीजों पे, अगर साइंस पे श्रद्धा है तो साइंस को मानेगा, हाँ ऐसे क्रिएशन हुआ है। बट साइंटिस्ट लोगों को भी पता है कि इतने सारे फ्लॉज है मेरे थ्योरी में, इसलिए थ्योरी बन के पड़ा हुआ है, लॉ नहीं बना हुआ अभी तक।
और बाकी सारे जब और इवन दिस फेथ इज सो पावरफुल, फेथ अगर साइंस पे डालेंगे तो दैट बिकम्स आवर लाइक पॉइंट ऑफ गिविंग होप। और यही फेथ हम जब शास्त्रों में डालते हैं, और शास्त्र में डालना कितना लॉजिकल है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार क्रिएशन कैसे हुआ अच्छी तरह से नाइसली एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली बार जब मैंने ये सब चीजें सुनी, आई वाज स्पेल बाउंड ना, कि किस प्रकार से दिस इज डायरेक्टली मेंशन्ड, यूनिवर्स किस प्रकार से हुआ, और हम बचपन से ये सारी चीजें सुनते आए हैं, ये सारी चीजें मैच भी करती हैं। तो ये संकर्षण क्या होता है, दिस संकर्षण, इन संकर्षण से, महासंकर्षण से पहली बार महाविष्णु आते हैं। अब इतने दूर तक ये सारी चीजें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रही है, आगे चल के ये आ रही है विष्णु। तो देखिए हमने बताया क्या नारायण और विष्णु में क्या अंतर है। नारायण स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक जो भी भगवान के एक्सपेंशन है वो नारायण कहे जाते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में जब क्रिएशन में भगवान, देखिए इस क्रिएशन को करने के लिए भी भगवान को ही पर्सनली घुसना पड़ता है, कोई भी देवी देवता क्रिएट नहीं कर सकता। तो ही हिमसेल्फ, हमारी भगवान की हमारे जीवों के प्रति कितनी करुणा है कि ही हिमसेल्फ कम्स टू क्रिएट एवरीथिंग, ही हिमसेल्फ कम्स टू क्रिएट एवरीथिंग। तो महाविष्णु स्वयं आकर क्रिएट करते हैं किस प्रकार से, तो ये इस चार्ट में जाके और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमने बाउंड्री देखी आध्यात्मिक जगत की, और इसके बाहर है ब्रह्म ज्योति। तो कुछ लोग कहते हैं अरे एक तू ही निरंकार है ना, एक तू ही निरंकार, अरे भगवान निरंकार बना के बैठे गए है ना, भगवान निराकार है, मतलब हम साकार हैं और वही निराकार है ना, एक तू ही निराकार। तो इस तरह से बहुत लोग हैं जो भगवान को क्या कहते हैं निराकार बनाने की कोशिश करते हैं। बट बेसिकली अगर भगवान निराकार होते तो भगवान का साकार रूप, अगर देखिए अगर भगवान निराकार है, इफ यस, तो अगर भगवान साकार है और अगर भगवान निराकार है तो भगवान इज नॉट कंप्लीट। और साथ ही साथ अगर भगवान सिर्फ निराकार है लेकिन उनका साकार रूप नहीं है, देन ऑल्सो लॉर्ड इज नॉट कंप्लीट। तो एक्चुअली अगर देखें, ही हिमसेल्फ हैज बोथ मैनिफेस्टेशंस, उनका साकार रूप भी है, उनका निराकार रूप भी है। तो उनके वैकुंठ धाम के बाहर ये ब्रह्म ज्योति जो स्थान है, इसको कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो ज्योति निकल रही, इसे कहा जाती है ब्रह्म ज्योति। इस ज्योति पे बहुत सारे योगी लोग ध्यान लगाते हैं, भगवान की शरीर की जो अंग कांति है, बोलते हैं ये निराकार रूप है, लेकिन भगवान कृष्ण एक्चुअली ब्रह्म ज्योति से भी कहीं ऊपर है। तो इस पे पर फोकस लगाना, दिस इज द निराकार एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, एक ही पिक्चर में भगवान के साकार रूप, भगवान के निराकार रूप को, दोनों को हमने एक्सप्रेस कर लिया। तो ऑफ कोर्स अभी हमने जो देखा, ये भगवान का जो धाम है, इसके बीच में एक बाउंड्री जाती है भगवान के वैकुंठ धाम और भगवान के इस धाम में, जो मटेरियल वर्ल्ड है एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बीच में सेपरेट करती है कारण सागर या विरजा रिवर। इस विरजा रिवर को पार करना आसान नहीं है। बोला जाता है ना, हम लोगों ने बचपन में सुना होगा कि गाय की पूंछ पकड़ के इस नदी को पार करना पड़ता है। अगर किसी ने गाय की सेवा की हो, गाय की बहुत गायों का दान किया हो, गायों की सेवा की हो, आप लोगों ने सुना होगा ये सारी चीज। तो ये विरजा नदी को पार करने के लिए वो तब हमें काम आता है, वो भक्ति हमें हमारे काम आती है। तो इस कारण सागर में कारणों दक्षाई विष्णु, तो ये विष्णु जो है, ही इज द क्रिएटर। तो इनके एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ठीक है, एक एक लोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और इनमें से जो एक ब्रह्मांड है उनकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके बीच में एक और ब्रह्मांड, इसके नीचे एक और विष्णु आते हैं जिनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जो कि इस ब्रह्मांड के आधे पार्ट में पानी, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड बाय वाटर, गर्भोदक सागर, उसमें भगवान विष्णु सोए हुए। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के विष्णु के बारे में बताएंगे हम। पहले तो बोला है कारणोदक्षाई विष्णु। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु एंड शिरोदक्षाई विष्णु। उनकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी बाकी बाद में जाके ये इतने सारे ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन आगे चल के भगवान स्वयं एक और विष्णु बनकर आते हैं जिनका नाम है शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु इज द परमात्मा। हम सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं वो परमात्मा रूप में बैठे हैं। दिस इज द थर्ड एक्सपेंशन। तो पहले जो अभी महाविष्णु के बारे में हमने देखा, महाविष्णु आगे चल के कैसे क्रिएट करते हैं, उनके लोमकूप से भिन्न भिन्न ब्रह्मांड बनते हैं। और ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड में वो जब दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात इज कंसिडर्ड इज लॉर्ड शंभु, क्योंकि माया का संग कभी विष्णु स्वयं कभी नहीं करने वाले होते। ही एसोसिएट्स विद माया इन द फॉर्म ऑफ शंभु। इसीलिए एक तरह से शंभु भी भगवान कृष्ण के ही एक तरह से अंश है। इज वेरी क्लोज, इज नॉट एनी ऑर्डिनरी जीवा। तो आगे चल के शिव जी takes a very lot more role in creation.
गर्भोदक्षाय विष्णु क्रिएशन करते हैं, उनकी नाभि से अगर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. तो टिल नाउ ओके. Anybody would like to ask any question regarding till now this concept? तो anyways, if there is no question, तो last thing is ये सारी चीजें हमने बताई कि किस प्रकार से विष्णु, कृष्णा is the source of Vishnu also. तो यहाँ पर हमने देखा this is the shloka from difference between Krishna and Vishnu. कृष्ण से विष्णु नहीं आए, सॉरी विष्णु से कृष्ण नहीं आए, कृष्णा से विष्णु आए, राइट. तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक हमने पहले ही दिखा है. एते च अंश कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युग. और तो और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने स्वयं दिखाया कि आई एम द सोर्स ऑफ सो मेनी विष्णु फॉर्म्स. हर एक ग्वाल बाल सखा में ब्रह्मा जी देख पा रहे थे कि एक एक ग्वाल बाल सखा में एक एक विष्णु, अनंत कोटि विष्णु, कोई 4 सर, लाइक ही वाज एबल टू सी. और साथ ही साथ इतने सारे ब्रह्मा जी को भी वो देख पा रहे थे. ये सारी लीला उन्होंने, ये सारी कृष्णा बुक में ये सारी चीजें हैं. तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस उदाहरण, कि लॉर्ड एट होम एंड लॉर्ड एट ऑफिस. तो जैसे कोई अगर पुलिस ऑफिसर है, तो पुलिस ऑफिसर अगर ऑफिस संभाल रहा होता है तो कैसे काम करेगा वो? He will be busy with his office work, right? और कैसे हम डील करेंगे उस ऑफिसर से? That dealing will be very official. सर के पास जाएंगे, सर कैसे हैं, सर चुका सकते हैं कि नहीं, हाँ सर सब ठीक ठाक है कि नहीं, मेरा ये साइन, ये फॉर्म पे साइन कर देंगे, मैं ठीक है कर दूंगा. तो इस प्रकार से अगर कोई ऑफिसर रहे, इसके पास कौन जाके, अगर बोला जाए कि विष्णु के साथ हम खेलेंगे कूदेंगे, हम कर सकते हैं क्या? इस पुलिस ऑफिसर के साथ खेल कूद सकते हैं? ये तो देख के डर लग रहा है इसको. लेकिन यही विष्णु जब घर पे रहते हैं, विष्णु एट होम becomes a loving father, a loving brother, है ना. तो इस प्रकार से घर पे अपने बच्चे के साथ कितना, वही व्यक्ति, वही पुलिस ऑफिसर अपने घर पे जब जाता है तो किस प्रकार से वो आनंद करता है. He is so much enjoying with his home, with his son, children, with his daughter, right? उसी तरह से उदाहरण दिया गया है कि विष्णु एंड कृष्ण का उदाहरण है कि कृष्णा विद हिज काउहर्ड बॉयज इस प्रकार से डील करते हैं कि भगवान कोई समझ भी नहीं सकता कि वो भगवान है, राइट. दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा कि गोलोक वृंदावन में कोई समझ नहीं जा पाता है कि कृष्णा इज गॉड, और सब उनके कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई कुश्ती खेल रहा है, और भगवान हार भी जाते हैं. दिस इज लाइक कृष्णा और विष्णु एट हिज होम, राइट, एंड विष्णु एट हिज ऑफिस. ऐसा है कि सब ऑफिशियल रिलेशनशिप, सब देवता लोग आके प्रणाम कर रहे हैं, बोले कि अरे भाई यूनिवर्स में सिचुएशन खराब है, आपको अवतार लेना पड़ेगा, सर प्लीज आ जाइए. तो दिस इज, अब ऐसे विष्णु के साथ ब्रह्मा जी जाके उनके साथ कबड्डी नहीं खेल सकते, उनके साथ कुश्ती नहीं खेल सकते. तो दिस इज एन ऑफिशियल रिलेशनशिप ऑफ ऑ एंड वेनरेशन. तो ये उदाहरण, एक बहुत फेमस उदाहरण दिया जाता है ब्रह्म संहिता में कि विष्णु बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं. तो ऑफ कोर्स दिस इज लाइक एक उदाहरण है कि जैसे एक दिया होता है, एक दिया है, लेकिन जब हम घर पे दिवाली जलाते हैं तो एक दिए से दिवाली के समय हम कितने सारे दिए बनाते हैं कि नहीं, कितने सारे दिए को लाइट करते हैं. उसी प्रकार से लॉर्ड कृष्णा इज द फर्स्ट मोस्ट दिया. तो दिस इज फ्रॉम श्रीमद ब्रह्म संहिता. ब्रह्म संहिता में ये श्लोक आता है, दीपार्ची एव दशांतरम अभ्युपेत्य दीपयते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रिक एव ही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण से इतने सारे विष्णु तत्व निकले हैं, लेकिन कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है? द फर्स्ट दिया एंड द अदर दिया. ऑफ कोर्स द फर्स्ट दिया इज द सेपरेट, वो तो उसका यूनिक पोजीशन ही होगा, लेकिन देखने में सब दिया एक ही जैसे हैं. उसी तरह से विष्णु और कृष्ण, उनकी पोटेंसी एक ही जैसी है, उनकी शक्ति एक ही जैसी है, लेकिन फिर भी कृष्ण की पोजीशन बाकी विष्णु तत्वों से थोड़ी डिफरेंट है, राइट.
तो ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं. तो when Lord is at home at Vrindavan, he is Krishna. When Lord is in the office, taking up the duties of creating universe, maintaining them, he expands as Vishnu. तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है. तो ये यहाँ पर हम, तो this is what, and अगर किसी का कोई प्रश्न है we can, yes, तो अरे इतने सारे प्रश्न हैं, ओके, इतने सारे प्रश्न हैं. So here we can see, okay. Shomi is telling कि यही चार्टर ऊपर आवर एक दिन क्लास कौन, ऑफ कोर्स ये होगा जैसे जैसे भगवत गीता आगे चलेगा, हम ये चार्ट बार बार रिपीट करेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. पहली बार आप लोग सुन रहे हैं तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी लगेगा, डोंट वरी. बट आप बेसिकली दिखाने का मतलब ये था, अभी तो मैंने क्रिएशन वाला चार्ट दिखाया है नहीं, किस प्रकार से ब्रह्मांड क्रिएट हो रहा है, वो तो दिखाने जाते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी बाकी सारे जीवों को किस प्रकार से क्रिएट कर रहे हैं, वो दिखाने जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे हम लोग. तो ये सारी चीजें ग्रेजुअली आएंगी. तो बट हम यहाँ से ये चीज समझ सकते हैं कि अगर चार्ट इतना कॉम्प्लेक्स है तो यूनिवर्स का क्रिएशन कितना कॉम्प्लेक्स रहा होगा, इतना इजी नहीं है. তো ক্রিয়েশনের চার্টটা আবার ক্লিয়ার করে আমরা আবার, লতা জি, यस, আমরা আবার পরে ই করব. यस, জয়ন্ত মুখার্জি ইজ টেলিং, ছোটবেলাতে শুনতাম যে প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান থাকে, তার ডিটেইলসটা হচ্ছে শিরোদক্ষায় বিষ্ণু. यस, ইউ আর রাইট প্রভু, উনি হচ্ছেন শিরোদক্ষায় বিষ্ণু রূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন. यस. সুতপা ব্যানার্জি ইজ টেলিং, how is wife inferior to husband, can you explain? Earlier also you mentioned that female, बेसिकली देखिए प्रकृति और पुरुष, तो अभी आत्मा रूप में अगर हम देखने जाएंगे, ये काफी लाइक नारी मुक्ति बाहिनी এটা टॉपिक হয়ে যাবে. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट आवर ये टॉपिक फॉर पर से. एक होती है प्रकृति, एक होते हैं पुरुष. प्रकृति इज डिपेंडेंट ऑन द पुरुष, दिस नेचर इज नॉट इंडिपेंडेंट. लोग कहते हैं कि ये क्रिएशन कैसे है, बाय नेचर दिस क्रिएशन हैज कम, बट नेचर इज आल्सो अंडर समवन. नेचर ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रही है, नेचर इज फेमिनिन एस्पेक्ट. कभी भी कोई फेमिनिन एस्पेक्ट अगर हम देखने जाएंगे, फेमिनिन एस्पेक्ट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मेल एस्पेक्ट. दैट्स व्हाई भगवत गीता ऑलवेज इट इज टेलिंग पुरुष पुरुष पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. एंड वी आल्सो, अगर हम यहाँ पर एक्चुअली अगर समाज में देखें, हम आत्माएं हैं, हम ना पुरुष हैं ना स्त्री हैं. वी आर सोल्स एंड सोल्स आर ऑल्सो प्रकृति. हम भी भगवान की शक्ति हैं. हम शक्ति, मतलब शक्ति का मतलब ये है एनर्जी एंड एनर्जेटिक. एनर्जेटिक इज द सुप्रीम, एनर्जी इज ऑलवेज वन स्टेप लोअर. तो कभी भी इसको ऐसा नहीं लेना. देखिए हम लोग कभी कभार पूरा एकदम ये हो जाते हैं, अरे हाउ दिस इज, एक्चुअली स्पीकिंग ऑलवेज अगर कोई वाइफ कहे कि आई वांट टू गेट अ चाइल्ड, कैन अ वाइफ alone get a child? She has to serve a husband, right? तो this is not a male dominating society, और इस तरह से मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ. Basically male and female are always dependent on each other, but still male is considered superior in the sense, not in the I am telling in the universal concept, in the sense क्योंकि पुरुष के ऊपर ही प्रकृति डिपेंडेंट है. अगर कोई एक स्त्री कहे कि I will myself create a progeny, मुझे किसी पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, that is not possible. A woman has to take shelter of a husband, then only she can beget a child. उसी तरह से प्रकृति also, प्रकृति is Durga Devi and she take with the help of Shambhu Tattva, she creates all the living entities. इसीलिए हम जिस की पूजा करते हैं, शिव जी और पार्वती, they are representing the सृष्टि तत्व. लेकिन उनके ऊपर भी कोई है, वो हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं. प्रकृति और पुरुष में ये अंतर है. तो हम लॉजिकली या इसके थ्रू द फैक्ट इज फैक्ट, उस पे कोई मेल डोमिनेंस और फीमेल प्रीडोमिनेंस की बात नहीं कर रहे हैं. अगर हम देखें, ओनली इन सनातन धर्म वी कैन अंडरस्टैंड दैट इवन इफ देयर इज, कोई अगर कह सकता है वी आर वर्शिपिंग श्रीमती राधा रानी आल्सो, गोपीज आल्सो, इनफैक्ट हम तो कृष्ण को ज्यादा भाव नहीं देते, हम राधा रानी के भक्त हैं. एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव जो है, कोई होता है कि कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो उसे कहा जाता है कार्ष्णीय, विष्णु की जो पूजा करते हैं उसे कहते हैं वैष्णव. लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में we are Gaudiyas मतलब sir, we are worshipping Srimati Radharani. For us Srimati Radharani is much more important than Krishna also. हम कृष्ण को इसीलिए भाव दे रहे हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है, हमारे लिए तो कृष्ण महान है.
तो हम कृष्ण के आराधक हैं, हम कृष्ण के उपासक, राधा रानी के उपासक हैं। तो आपको लग रहा है कि अरे ना वी आर वर्शिपर्स ऑफ श्रीमती राधा रानी, हम हमें जो हमारे अंदर हृदय में जो भक्ति है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अरे कृष्णा गिव्स मोर प्रिडोमिनेंस टू श्रीमती राधा रानी, देहि पद पल्लव मुदारम। इन Jayadev Goswami's creation, there is a mention Krishna also worships Srimati Radharani. कृष्ण ऑल्सो वर्शिप श्रीमती राधा रानी। उसी के लिए वो श्लोक आता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं और जयदेव गोस्वामी के कृति में एक लाइन लिख के जाते हैं कि मैं राधा रानी को भी मैं अपने से ऊपर परम श्रेष्ठ मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर कोई इस तरह से, दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन ऑफ हु इज सुप्रीम और हु इज नॉट सुप्रीम। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज सच अ स्कोप दैट वी कैन वर्शिप एनीवन वी वांट, इन द मेल फॉर्म, इन द फीमेल फॉर्म आल्सो। And even in Islam also there is a concept of Fatima, in like this kind of feminine aspect. Even Maryam, in Christianity there is a concept of worshipping the female counterpart of the Supreme Lord as a mother, divine mother. So that way this is not wrong. So don't take it in that spirit ki this is a male predominant or female predominant society. No, nothing like that. So Sutapa Mataji, like I try to clarify in this way, right? So don't worry. We are Gaudiyas, and Gaudiyas are worshipping Radharani and Gopis much more than Krishna also. This is our moment. Somadev Prabhu, that's why Shiva, he is telling that Shiva is the only single Dev, Mahadev. Okay. And Nirankar, Ek Dev Maheshwar. But here Bhagavatam says creator of world is Lord Shri Krishna. Yes. So Somyadev ji, Bhagavatam says that the creation of the whole world is Lord Shri Krishna. और आगे चल के ब्रह्मा जी ने बाद में सारे देवताओं की सृष्टि की, इस तरह से सब देवताओं की सृष्टि की। बट ऑफ कोर्स इन 33 करोड़ देवताओं में शिव जी एंड दुर्गा देवी, दे आर completely different. They are above all. Their role is completely different. They are coming much more than creation also. हमने वो देखा ना, शिव गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई की विष्णु की जो महाकाल है, वो कौन है? भगवान विष्णु के जो दृष्टि है, ही इज महाकाल। He has much more superior role, but of course he is also worshipping Lord Vishnu. So of course we will take some more session on Shambhu Tattva because it takes a lot more time. और ये हमारा doubts बार बार आएगा, तो chapter number 3, 4 and in 7th chapter again we will be coming to these sections. So hopefully with this note we will be ending today's session, and next Sunday there will be a session on the chanting of the holy names. तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज कम ऑन टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट इंस्पायर्स एवरी वन ऑफ अस। आपको हमको सबके लिए इंस्पायर करता है कि आप लोग प्लीज टाइम पे आइए, देन वी कैन गेट द मोस्ट बेनिफिट। ओके, सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।